प्रिविलेज है कि हमारे अपने कन्वीनर सर डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा सर आज स्पीकर भी हैं, and he doesn't need any introduction but just a small formal introduction so that those who want to know more about him they can know more. Like sir is associate professor and ex HOD in the department of Rachana Sarir in University College of Rajasthan Jodhpur. Sir is also chairman of internal quality assurance cells, director prioritization monitoring and evaluation, director central center of human resource development, Director Dr. APJ Abdul Kalam Central Library. Sir is also Nodal Officer, University Unani College and Hospital Tonk, ex-member Board of Management of and Board of Studies, Editor-in-Chief of University Newsletter, Health Magazine and Research Journal, that is IJRA, Chief Proctor and Coordinator of Ayurveda Homeopathy Unani Medical Officer Recruitment. Sir has done PhD from Rajasthan University, MD from DSRRAU Jodhpur, BMS from Arog Mitra Samiti Jabalpur, MA Sanskrit Rajasthan University, MA English MDS University Ajmer, MA Urdu Maulana Azad National Urdu University Hyderabad. Sir has also done one diploma for 3 years in German language at UG level from Rajasthan University and certificate course in a spoken English Rajasthan University Jaipur. Sir has received various awards also, like some of them are Late Sri Pandit S.C. Sharma Best PhD Thesis Award, Late Sri B.G. Ghanekar Best Teacher Award, Late Sri B.G. Ghanekar Sarir Shresth Ratn Award, Utkarsh MD Thesis Award, Best Teacher Award from University itself, Utkarsh Ayurveda Lekhana, and Professor D.G. Thatte Visheshagya Award, that is National Level Award from 2021. Sir has also published 17 books and also has published various articles in the international and national journals, which are mostly 23, and been the peer review panelist in international and national journals for 6. Sir has also visited foreign, especially in Sri Lanka in 2015. Sir has taken part as resource person in various CMEs, national and international seminars. So these are some glimpse of the broad spectrum of our sir. Sir is convener. Sir is very good at heart. What I personally know to sir. सर से कुछ भी हेल्प मांगा जाए तो मिलता है. And these academic qualifications are just a star in the sir's signing marble life. So, sir, I welcome you from whole of my heart and from the whole team to continue as for your lecture. Sir. Just a minute. I'm starting. Right now, the light has come back. Okay, sir. It was a load shedding here. Just a minute. Just a minute. Now. 2 or 3 minutes. Gauravji, you can engage till then. 2-3 Yes. minutes. So today's topic, as we know, is depend on the Granthi Sarir. Granthi Sarir is, as previously told by Dr. Amol sir, that it is a very ignored topic in our field. As we are teacher, we already teach that endocrine system is there, this system is there as per modern. And when we have to talk about Ayurveda prospect, we have to be very mum or keep quiet on that particular topic. So I think today's lecture will be very important for us teachers so that we can engage our students and give some important inputs that what actually Granthi means and how we can correlate this with the contemporary science. I think sir will elaborate on this topic. What I feel is that normally Granthi say we only talk about tumors, not tumors. This is not tumors. Sir will elaborate it more. I think it will complete more topic like physiological aspects also, like that Asta Nindit Purush should come in this particular topic, so that the symptomatics of endocrine will be discussed here. So let us see or wait for some time so that sir can start the topic. Thank you. Thank you very much.
I am very grateful to my team. Uh, as we know that we have taken the oath when we started this Rachna Shari Sambhasha. I took the oath. The other side, whether it's a commitment, let us take some a little bit humble word, that is commitment, not an oath. It is a commitment that we would be organizing Rachna Shari, because it is a monthly lecture series. So it was a commitment that we would be organizing this lecture series every month. There may have been some changes in the dates of that in that particular month, but now we have tried to fix it on the every third Sunday of the month. So this time also, though we have been busy somewhere for the whole month, actually I was having some liabilities with me in this month, additional responsibilities with me, so that for that we could manage the things. We can circulate uh, the the information about this lecture a little bit late, but I'm glad that everybody is quite interested and everybody is quite uh, committed to participate in this lecture today as well. So I congratulate, I pay my wholehearted gratitude to my team, Dr. Sachin Khedikar ji, Dr. Gaurav ji, Dr. Amol Deshpande, Dr. Sachin ji, Dr. Gajan Gaurav ji, Dr. Manjula ji, Dr. Anubha ji, everybody who has contributed to organize, and rest of the coordinators, because it is not possible that every time every coordinator would be available. It is a holiday today, and somebody may be engaged somewhere else. So some of our coordinators are engaged somewhere. That's why they are not available today, but they also support us whenever they are available. Usually they are available. And I pay my special gratitude to Dr. Kishore Lalji, that he has taken pain to be present in this lecture today and to deliver his keynote. And he has explained a lot in my favor. Thank you very much, Kishore Lalji. Thank you, Gaurav Soni ji, for being there and introducing me in such a larger scale. I'm not such a you can say uh, greater person. I am a person from out of you, one of out of you. So just count me one of you. So mm, and I welcome all the participants who have taken pain to be here in this lecture. Thank you very much for each and everybody, from the persons who have joined here from every nook and corner of India. Thank you very much. So now I start with my proceedings. Can you share the presentation, Sachinji, please? Okay, sir. Okay, sir. Mhm. अर्जुन वो बैग हटा दे please. इसको थोड़ा सा ऊपर ले सकते हैं क्या, ताकि ऊपर ऊपर का ही देखें हम. नहीं आपको सही दिख रहा है वो अरे मैं सही दिख रहा हूँ, वो पीछे का मेटल ऊपर का आएगा, नीचे का. कुछ नहीं दिख रहा पीछे का सचिन जी प्रेजेंट हो गया. हाँ, हो रहा है सर, हो रहा है. हम्म. इट्स टेकिंग टाइम. हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, इट्स ओके. अब अभी तो इधर से भी कर सकता था, अब तो लाइट आ चुकी है.
सर दिख रहा है सर? सर इज इट विजिबल? दिख रहा है सर, दिख रहा है, इट इज विजिबल. ओके So shall I start? यस सर. थैंक यू वेरी मच सचिन जी. मुझे इस बार फिर आपके साथ में अपने विचार शेयर करने का अवसर मिला है. अगर हम रचना शारीर की बात करेंगे आयुर्वेदीय पक्ष के हिसाब से, तो हम जब बात करते हैं, अभी एक दिन बात चल रही थी, मैं यहाँ कैंपस में चर्चा हो रही थी, वीसी सर भी बैठे हुए थे और कुछ लोग बैठे हुए थे. अभी मैं कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप, हमारा 1 महीने का प्रोग्राम चल रहा है सेंटर फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की तरफ से अपने यूनिवर्सिटी में, उसको देख रहा हूँ मैं. तो ऐसे ही बात चल रही थी, जब बात चल रही थी कि सर कह रहे थे, एक दिन बात चल रही थी, सिलेबस की बात हो रही थी, कहीं कुछ करिकुलम की बात हो रही थी, तो होम्योपैथी भी है हमारे यहाँ, तो बात चल रही थी वहाँ कि भाई आपके यहाँ होम्योपैथी में सब्जेक्ट्स की जरूरत क्या है मॉडर्न वाले, कि आपका एक सब्जेक्ट जो विशेष फार्माकोलॉजी, और बस वो 2-3 जो चीजें हैं वही तो पढ़ाने की आवश्यकता है, बाकी सारा तो एज इट इज आपका मॉडर्न का ही है. तो ये बात भी चली तो कि साहब इसको भी इस तरीके से अपन एनसीएच को लिख करके दे सकते हैं, भाई एक पार्ट ही तो पढ़ाना है, एक पार्ट पढ़ा दीजिए मॉडर्न साइड में या कहीं भी करके, तो इनके जो है वो सफिशिएंट है, इतना पूरा इतना करने की जरूरत ही नहीं है. तो इसी परिप्रेक्ष्य में जब बात आई थी, तो हमारे यहाँ जब रचनाशारी की बात आती है एनाटॉमी की, तो हमारा अलग से पूरा थ्योरी है, हमारा कंसेप्ट है. तो उस कंसेप्ट को बेस को देखते हुए मान करके चलेंगे तो आयुर्वेद में हर जगह हमारा कंसेप्ट देखने को मिलेगा, चाहे वो अग्नि है या हम ग्रंथि शारीर की बात करें, चाहे हम स्रोतस की बात करें, चाहे हम त्वक शारीर की बात करें. हर एक जगह जहां भी देखेंगे तो हमारे उसमें जो है हमारे एस्पेक्ट्स हमको मिलते हैं, हमारे कंसेप्ट हमको देखने को मिलते हैं. तो इसी रेफरेंस में जो लास्ट टाइम मेरा थोड़ा इंटरेस्ट रहता है कि हम अपना एक्सप्लोर करें अपनी चीजों को, तो जैसे इसी बात पे चली तो मैंने सोचा किस बात पे चर्चा करें, तो कुछ एक मेरा मेरा एक परसेप्शन था, तो मैं उस बारे में आपसे बात करना चाहता था. हो सकता है आप सब जानते हो, मेरे से भी ज्यादा जानते हो, तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जो मैं अपने साथ जो मुझे लगता है मैं वो आपके साथ शेयर करूं. अगर मैं कुछ 1% भी उसमें अगर पॉसिबल हो पाया तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, वो मेरे लिए 100% होगा, क्योंकि यहाँ सारे जितने भी मौजूद हैं इसमें कुछ मेरे हो सकता है अग्रज हों, कुछ मेरे अनुज हों, कुछ मेरे गुरुजन भी हो सकते हैं, कुछ मेरे स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं. तो सभी आज इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, तो मुझे जो है अपनी बात उनके सामने रखने का अवसर मिलेगा. तो इट्स अ प्राइड मोमेंट फॉर मी. तो ग्रंथि शारीर के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट. सचिन जी. जी सर. तो जैसे कि बात करें हम ग्रंथि शारीर, तो ग्रंथि शारीर बेसिकली देखा जाए तो आयुर्वेद में कहीं भी ग्रंथि का वर्णन नहीं है, कहीं भी सुनने को नहीं मिलता है कि ग्रंथि नाम से. जब हम ग्रंथि की बात करते हैं तो ग्रंथि में एक जो है एक गांठ नुमा स्ट्रक्चर या ग्लैंड टाइप का स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में जरूर ग्रंथि का एक रोग के रूप में वर्णन किया गया है. अदरवाइज कहीं ग्रंथि का और कहीं ग्रंथि शारीर के रूप में कहीं वर्णन देखने को नहीं मिलता है. तो अगर हम देखेंगे जब ग्रंथि शारीर की बात जहां की है, तो वहां ग्रंथि शारीर का जो ट्रांसलेशन किया गया है वो मॉडर्न वर्ड से ही लेकर के किया गया है, क्योंकि वहां ग्लैंडुलर सिस्टम को उन्होंने पॉइंट आउट किया है, एंडोक्रोनोलॉजी को उन्होंने पॉइंट आउट किया है. तो डिफरेंट ग्लैंड्स एंड ग्लैंड्स जहां अपन बात करते हैं तो ग्लैंड्स भी एक गांठ नुमा स्ट्रक्चर ही होते हैं, इसीलिए शायद इसको जो है ग्रंथि शारीर कहते हुए हमने, चूंकि कुछ विषय ऐसे हैं जैसे रचना शारीर और एनाटॉमी, मॉडर्न साइड में चले जाएंगे तो अब मॉडर्न जो कॉलेज हैं शायद एमपी में भी आप देखते होंगे, वहाँ अगर मॉडर्न मेडिकल कॉलेज में भी जाएंगे तो वहाँ हो सकता है कि जब एनाटॉमी लिखा होगा तो ब्रैकेट में रचना शारीर भी लिखा होगा. तो बेसिकली रचना शारीर और ये जो या जो ग्रंथि शारीर, ये जितने भी वर्ड हैं ये बेसिकली सब एक ट्रांसलेशन है मॉडर्न जो मेडिकल साइंस के जो टर्म्स हैं उनको लेकर के किए गए हैं. तो इसी परिप्रेक्ष्य में जब हम बात करेंगे
तो हम ग्रंथि शारीर से क्या समझें, ग्रंथि शारीर बेसिकली क्या कंसेप्ट हो सकता है, इस पे मैं अपने जो कुछ पॉइंट हैं वो चर्चा करना चाहूंगा। तो कुछ मैं आधुनिक पक्ष को मुझे लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको चर्चा को करते हुए ही अपन आगे बढ़ पाएंगे। तो आधुनिक पक्ष को मैं बहुत ज्यादा नहीं लूंगा, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं, क्योंकि ग्रंथि शारीर में बहुत बड़ा विषय है, तो बहुत ज्यादा डिटेल से अपन नहीं चलेंगे, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट आउट करते चलेंगे हम शॉर्ट में। और उसके उसके साथ में हम कुछ, फिर हम कहाँ जाकर के आयुर्वेद को कनेक्ट कर सकते हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जब हम बात करते हैं ग्रंथि शारीर की बात है, तो इट इंक्लूड्स वेरियस टाइप ऑफ ग्लैंड्स सिचुएटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। These glands secrete hormones directly into the blood rather than into a duct system. Ductal system जो कह सकते हैं, नेचुरली हम जानते हैं कि 3 प्रकार की, अभी और थोड़ा सा क्योंकि कोई प्रेजेंटेशन देना है तो पॉइंट आउट तो पूरी चीज करनी पड़ती है, तो उस रूप में अपन बता रहे हैं। तो हम सब जानते हैं कि बेसिकली जहाँ बात की है ग्लैंडुलर सिस्टम की, जहाँ बात करते हैं बेसिकली, तो वो एंडोक्राइनोलॉजी ही से ही समझा जाता है, एक्सोक्राइनोलॉजी से नहीं समझा जाता है। तो बेसिकली एंडोक्राइंस आर जो है आर कंसर्न्ड विद द ग्रंथि शारीर। तो these glands secrete hormones directly into the blood rather than into a duct system. डक्ट सिस्टम के माध्यम से किसी पर्टिकुलर लिमिटेड एरिया में एक्टिविटी करना और एक ब्लड के थ्रू टारगेट एरिया तक पहुंचाना, या ओवरऑल पूरी बॉडी को जो है इन्फ्लुएंस करना, वो एंडोक्राइनोलॉजी का पार्ट है। तो हार्मोन इज ए केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑर्गन एंड रिलीज्ड एंड ट्रांसपोर्टेड इन स्मॉल क्वांटिटी बाय द ब्लड टू अ डिस्टेंट ऑर्गन टू परफॉर्म इट्स स्पेसिफिक फंक्शन। बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, केमिकल्स हैं, केमिकल स्ट्रक्चर है पूरा शरीर, जो है रासायनिक जो है गतिविधियां पूरे शरीर में देखने को मिलती हैं। हार्मोन्स हैव मैनी डिफरेंट फंक्शंस एंड मोड्स of action. One hormone may have several effects on different organs, and conversely to be affected by the more than one hormone. तो कई सारे ऑर्गन भी एक हार्मोन से इफेक्ट हो सकते हैं। ये एक जो है एक परसेप्शन हम अच्छी तरह से जानते हैं। नेक्स्ट सर। नेक्स्ट वन सर। ये एक मॉन्यूमेंटल हमने डायग्राम देने का प्रयास किया है। हम सब जानते हैं, हो सकता है इसमें सारी टच नहीं हूं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि ये सारी जो है ग्लैंड्स बेसिकली देखने को मिलती हैं। हाइपोथैलेमस, पीनियल, पिट्यूटरी, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल्स, आइलेट्स ऑफ लैंगरसन, पैनक्रियाज एंड ओवरीज, टेस्टिस। नेक्स्ट वन प्लीज। Yes, sir. Hormones are the inbuilt structure of functional mechanism in the human beings which control the physiological function if these are in the normal range. Otherwise, these are responsible for the crackdown in normal life. That is hyper or hypothyroidism, gigantism, or dwarfism, polycystic ovarian syndrome, diabetes, and many more. हम देखते हैं कि एक आगे मैं इसको चर्चा भी करूंगा। ये सारे जो बीमारियां हैं, जितने भी रोग हैं, वो कहीं ना कहीं हार्मोनल इन्फ्लुएंस के कार्य ही देखने को मिलते हैं। हार्मोन का बहुत बड़ा रोल इसमें देखने को मिलता है। हार्मोनल थेरेपी भी आजकल इस चक्कर में आ गई है ट्रीटमेंट करने के लिए। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट हमने दिखाने का प्रयास किया कि किस प्रकार से वेरिएशन देखने को मिल रहा है और ये क्यों देखने को मिल रहा है। ये सामान्य स्थिति नहीं है, ये असामान्य स्थिति है। तो उसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वन प्लीज। नाउ वी कम टू द एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी आजकल जैसे जैसे नीड बढ़ती चलेगी, हम जब अपनी बात करते हैं तो हमारे यहाँ हम सिर्फ जो जब शास्त्र को देखेंगे तो हम सीमित थे शारीर तक। विषय हमारा शारीर था, शरीरम अधिकृत्य तंत्रम शारीरम। तो रचना प्रतिपादकम तंत्रम रचना शारीरम, क्रिया प्रतिपादकम तंत्रम क्रिया शारीरम। फिर बाद में व्याख्याएं बढ़ती चली गई आधुनिक ग्रंथकारों के हिसाब से, और हम देखते हैं कि आज के समय में जब देखा तो अब शारीर की व्याख्या करेंगे तो शरीर रचना के 2 पेपर हो गए हैं, फिर उनमें और प्रैक्टिकल हो गए, हो सकता है आने वाले टाइम में और बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे नीड बढ़ी वो आगे आगे बढ़ता चला गया। लेकिन अगर हम जब बात करेंगे
तो जब शास्त्र को देखा जाता है, जैसे मैं इतनी देर किसी एक छोटे से पॉइंट पे बोलूंगा तो 2 घंटे तक या 1 घंटे तक बोल जाऊंगा, लेकिन जब शास्त्र में लिखने की बात आएगी तो संक्षिप्त रूप में ही लिखा जाएगा। तो हम शास्त्र में जैसे ग्रेस को पहले लिखा गया था तो शॉर्ट उसमें ही लिखा गया था, धीरे धीरे उसके एलेबोरेशंस होते चले गए और एक्सप्लोर होते होते आज वो किस लेवल तक ग्रेस पहुंच गया है। मुझे आज भी ध्यान है, डेविडसन की बुक देखेंगे तो 70s की बुक इतनी छोटी सी होती थी और आज देखेंगे तो डेविडसन कितनी बड़ी अपने आप में जो है उसका थिकनेस वॉल्यूम कितना बढ़ गया है। तो जब हम ये बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि डे बाय डे चीजें एक्सप्लोर हो रही हैं, उनका एक्सपेंशन हो रहा है। तो इसी आधार पर हम देखेंगे तो मॉडर्न साइड में जब जाएंगे तो एंडोक्राइनोलॉजी एक अलग से पूरी की पूरी ब्रांच ही डेवलप हो गई है, जो पूरा का पूरा हार्मोनल जो सिस्टम है उसको डील करती है। तो ये देयर आर ए वैरायटी ऑफ ग्लैंड्स व्हिच सीक्रेट हार्मोन्स टू इन्फ्लुएंस मोस्ट एवरी सेल ऑर्गन फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो कहने का मतलब है अब ये कंसेप्ट आने लग गया है कि आपके जो शरीर की जो जो रोग की जितनी भी संबंधित प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं एंडोक्राइन से जुड़ी हुई ही हैं। आगंतुक व्याधियां तो कुछ भी हो सकती हैं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कहीं ना कोई ग्लैंडुलर सिस्टम इफेक्ट होता ही है। ये मान करके भी अपन चल सकते हैं, ये कंसेप्ट भी वो ले सकते हैं। आने वाले टाइम में एंडोक्राइनोलॉजी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है मेडिकल हेल्थ केयर सिस्टम, मेडिकल एंड हेल्थ केयर सिस्टम में। नेक्स्ट वन सर, जैसे कि मैंने कह दिया, इट कंट्रोल्स द इंटीग्रेशन ऑफ डेवलपमेंट सेल, developmental events, proliferation, growth, differentiation, the psychological, behavioral activities of metabolism, tissue function, growth and development, sleep, digestion, respiration, excretion, mood, stress, lactation, sexual function, movement, reproduction, sensory perception, all the function का बताइए कौन सा एक्शन है जो छूट रहा है? हर एक्शन जो है हार्मोन के माध्यम से ही पॉसिबल। इट इज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ हार्मोन। इसलिए हार्मोन का शरीर के जो दैनिक क्रिया है उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल है। नेक्स्ट वन प्लीज। Each hormone has its own specialty and affects the target cells throughout the body as a routine process. Every time hormones get destroyed after their function on their target organs issues, either by the liver or actual tissues of the target organs. तो ये उसके बाद में खत्म एक उनका केमिकल रिएक्शन है, केमिकल फंक्शन है, होने के बाद उसका रोल प्ले खत्म हुआ, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये चलता रहेगा, एक चेन है पूरी की पूरी बनी रहेगी, नए आएंगे पुराने खत्म होते रहेंगे, जो अपना सिस्टम है। देन लेटर ऑन जैसे ही खत्म होगा, लेटर ऑन जो डिस्ट्रॉयड यूज्ड हार्मोन्स आर रिमूव्ड बाय द किडनीज एज ए रूटीन प्रोसेस, या और कोई प्रोसेस है जो अपने एक्सक्रीशन का मोड ऑफ एक्सक्रीशन है उसमें जो रोल प्ले करती है, उनके माध्यम से वो डिस्ट्रॉय होते चले जाते हैं। नेक्स्ट वन प्लीज। इन दिस एरा सेडेंटरी लाइफस्टाइल इज काजिंग मेनी डिजीज। दूसरा हम जो एस्पेक्ट अगर हम आज की बात करेंगे तो जैसा आजकल देख रहे हैं हम, बार बार जब योग की बात आती है, अब 21 जून को फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, अब तो 23 सितंबर आयुर्वेद दिवस भी मनाया जाने लगा है। तो हम बार बार आजकल योग की जब बात करते हैं तो योग के जो भी उसको करवाने वाले मेंटोर हैं, वो मेंटोर्स का एक जो एक्सप्लेनेशन होता है तो वो बार बार कहते हैं ये इस ग्लैंड पे इफेक्ट करती है, उस ग्लैंड पे इफेक्ट करती है। अगर हम त्राटक की बात करेंगे तो सब हाइपोथैलेमस पे इफेक्ट करती है, आपके पिट्यूटरी पे इफेक्ट करती है। इनके एविडेंस बेस्ड कितने एक्सप्लेनेशंस हैं वो एक सेकंड मैटर ऑफ डिस्कशन है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखेंगे तो ये सारे पार्ट्स, चाहे हम कुछ भी है, चाहे हम उसकी बात करेंगे, वज्रासन की बात करेंगे या भद्रासन की बात करेंगे, जितने भी हैं कहीं ना कहीं ये सारे के सारे ग्लैंडुलर सिस्टम को इफेक्ट करते हैं, उनकी एक्टिविटी बढ़ाते हैं, उनकी मोटिलिटी बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से हम फिट रहने का प्रयास करते हैं। तो योगा सिस्टम हमारे इसी सिस्टम को, हमारे ग्लैंडुलर सिस्टम को मजबूत करने का रोल, और प्लस हमारी जो मसल्स है, मस्कुलर जो एक्टिविटी है, जो शरीर की फिटनेस है, उसको तो बोथ एस्पेक्ट्स को वो करता है। और इन इट का जो अपना हम बात करते हैं सेडेंटरी लाइफ काज्ड ए न्यू, इट काज्ड ए न्यू, इसकी वजह से न्यू स्पेशलिटी अंडर डेवलप एज ए की ब्रांच इन मॉडर्न dealing with disorder related to over or under production of hormones as a menarche, menopause, other menstruation problems, pregnancy, prostate disorder, diabetes, metabolic disorders, lack of growth, osteoporosis, thyroid disease, cancer of the endocrine, cholesterol disorders, hypertension,
इनफर्टिलिटी एटसेट्रा। ये सारी बीमारियां सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से डेवलप होती चली जा रही हैं आजकल, क्योंकि वर्किंग कैपेसिटी खत्म हो गई है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से ये प्रॉब्लम्स हमारी डेवलप हो रही हैं, और इसी वजह से ये हमारा जो एंडोक्रिनोलॉजी का एस्पेक्ट है वो इनको इससे जुड़ी बीमारियां, तो इनको ठीक करने में इनकी महत्ता बढ़ती चली गई डे टू डे। नेक्स्ट वन प्लीज। अब इस पे ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। ग्लैंड्स आर टू टाइप्स हैं, दो टाइप की होती हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं। चार मुख्य हैं, डक्ट ग्लैंड्स होती हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं, और कुछ ग्लैंड्स दोनों तरह की होती हैं, उभयस्रावी कहते हैं, लिवर पेनक्रियाज, और सम एक्ट एज टेम्पररी। कुछ टेम्पररी ग्लैंड्स भी होती हैं, प्लासेंटा, थाइमस एटसेट्रा, जो एक पर्टिकुलर टाइम, ब्रेस्ट भी उसी में काउंट होती है, पर्टिकुलर टाइम तक वो काम करती हैं, उसके बाद उनका रोल खत्म हो जाता है। इस पे ज्यादा समय नहीं लेंगे, ये बेसिक्स हैं जिनको हम लेकर के चल रहे हैं। नेक्स्ट वन प्लीज। अब ये थोड़ा इनके बारे में बता दें। हाइपोथैलेमस लोकेटेड इन लोअर सेंट्रल पार्ट ऑफ ब्रेन। ऐसा लग रहा है मैं एनाटॉमी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं इनको कहीं आगे जोड़ना चाहूंगा, और इसी में वो चीजें आएंगी कहीं कहीं बीच में जो मैं इनको लेना चाहूंगा। तो हाइपोथैलेमस लोकेटेड इन लोअर सेंट्रल पार्ट ऑफ ब्रेन, जैसे हम कहते हैं बिटवीन द एंडोक्राइन ग्लैंड्स और नर्वस सिस्टम के बीच में इनका लिंक होता है। तो उससे लिंक्ड है कि ब्रेन और उसके बीच में, पिट्यूटरी के बीच में एक तरीके से लिंक्ड है, एक तरीके से, जो सारी प्रोसेसेस को एक्टिवेट करती हैं। इस पे अपन ज्यादा नहीं जाएंगे। Nerve cells in the hypothalamus control the pituitary gland by producing chemicals that either stimulate or suppress hormone secretions from the pituitary. Glands monitor what is happening in body and then instructs the pituitary glands on what needs to be done. Pituitary gland being the regulator of various other endoglands, it is known as the master gland. Next one, sir, please. ये सब आपको मैं सिर्फ और सिर्फ एक खाली चर्चा के रूप में लेकर के चल रहा हूँ। अब यहाँ पे इस बात को लेके आ रहे हैं जो अभी गौरव जी ने भी कहा था, और यही एक मुद्दा है महत्वपूर्ण। Anterior lobe of pituitary produces human growth hormone HGH. HGH in excess quantity, human growth hormone in excess quantity causes bones to grow very long, as this disallows epiphyseal junction formation. रोकने का काम करता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, कि एक लिमिट तक इसको रुक जाना चाहिए, नॉर्मल फीचर है। लेकिन अगर वो नहीं होता है, किसी प्रकार का डिसऑर्डर है, तो जाइजेंटिज्म डेवलप होगा। 9 फुट तक लंबा आदमी देखने को मिल सकता है अपने को, मे बी मोर, जो भी वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। और एक्सेप्शनली जब भी हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं तो हमको एकदम से लगता है कि यार, वो इमीडिएटली हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कहीं ना कहीं ये इशू है कि ये उससे। तो अब जब आयुर्वेद की बात करते हैं, अब हम बात करते हैं आगे भी इसी बात, क्योंकि आयुर्वेद में तो कहीं कहा नहीं है ग्लैंडुलर सिस्टम के बारे में, तो हम कैसे माने। तो हम कई बार इस बात की चर्चा भी करता हूँ कि जैसा अष्टोनिंद्रिय पुरुष की जब हम बात करते तो ये अष्टोनिंद्रिय पुरुष बेसिकली क्या चीज है, ये बेसिकली उसी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं जो आपका जो ग्रंथि शरीर का एस्पेक्ट है उसी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा ग्रंथि शरीर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, तो इस कारण हमारी ग्रोथ बहुत बढ़ गई है या बहुत कम रह गई है। हम आगे इसको जो है और इसको उसमें देखेंगे। तो ये जो अति दीर्घ पुरुष मेंशन्ड अंडर अष्टोनिंद्रिय पुरुष रिफ्लेक्ट्स द एब्नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ दिस हार्मोन, तो ये जाइजेंटिज्म का एस्पेक्ट हो सकता है। तो इसी प्रकार नेक्स्ट वन प्लीज। ये देख सकते हैं डेफिशिएंसी ऑफ एचजीएच कॉजेस ड्वार्फिज्म। आयुर्वेदा एज ह्रस्व पुरुष, ये मैंने शुरू में भी डायग्राम दिखाया था। ऑन द कंट्री हम बात कर रहे थे डेफिशिएंसी से, हम ये देखें तो ड्वार्फिज्म इज रिकॉग्नाइज्ड अर्ली इन ए चाइल्ड और एडोलेसेंट। एचजीएच प्रोड्यूस्ड causing the child to grow। तो हम देख रहे हैं ड्वार्फिज्म जो है नेक्स्ट सर। इसी में जो पिट्यूटरी की बात करेंगे, अनदर हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी is prolactin. Prolactin stimulates production of milk in mammary glands, which is used to make the young. It may also stimulate maternal behavior. Thyroid stimulating hormone secreted by anterior pituitary causes the thyroid gland to function. If this hormone is absent, the thyroid gland shuts down.
The anterior lobe of the pituitary also produces adrenocorticotropic hormone. ACTH influences the amount of various corticoids produced by the cortex of the adrenal glands. Corticoids help regulate the amount of minerals in our bodies as well as the thyroid. मैं सिर्फ चर्चा में लाना चाहता हूँ, ये सारी चीजें इस पे हमने डिस्कस करने के मूड में नहीं हूँ, ये सिर्फ के साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ना चाहता हूँ. नेक्स्ट वन प्लीज. जब हम बात करते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज ए कलेक्टिव नेम फॉर ए ग्रुप ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द स्किन, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस इन रिस्पांस टू द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. इट प्लेज अ की रोल इन प्रोड्यूसिंग कलर पिगमेंटेशन found in the skin, hair and eyes. It does this by inducing specialized skin cells called melanocytes to produce a pigment called melanin, and excessive increase in MSH causes darkening of the skin. In Ayurveda, it is said at the Ati Krishna Purush. An excessive decrease of MS causes albinism, which can be called as Ati Gaur Purush in Ayurveda. तो हम ये कंसेप्ट देख रहे हैं, ये हम चित्र के माध्यम से देखने का प्रयास कर रहे हैं कि कितना वेरिएशन है कलर में. हमारे यहाँ आयुर्वेद में तो 3 प्रकार के वर्ण माने गए हैं, अति कृष्ण, अति गौर और श्याम वर्ण भी माना गया है. तो इस प्रकार से कृष्ण, श्याम और गौर, ये 3 प्रकार से वेरिएशन दिए गए हैं. तो इसके पीछे अगर हम जब बात करेंगे अष्टोनिंदितीय में 2 तरह की बात की, अति कृष्ण अति गौर की बात की है, लेकिन कलर वेरिएशन की बात तो हुई ही है. तो ये कलर वेरिएशन क्यों है, इसके पीछे भी जो हम अगर एस्पेक्ट को देखेंगे तो हम ग्रंथि शरीर के एस्पेक्ट को देख सकते हैं. और हम देखते हैं जब भी अगर हम सिलेबस की बात करेंगे तो हमारा सिलेबस में ग्रंथि शरीर के नाम से दिया है, तो हम ग्रंथि शरीर में क्या पढ़ा रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न एस्पेक्ट ही पढ़ा रहे हैं. तो जब हम चर्चा करते हैं, पढ़ाते समय जब हम चर्चा करते हैं, तो हम चर्चा करते समय इन रेफरेंसेस को वहां उद्धृत करते हैं, क्योंकि ग्रंथि शरीर हमारे आयुर्वेदिक एस्पेक्ट पे कहाँ खरा उतरता है, उसको अप्लाइड वे में हम किस तरीके से समझ सकते हैं, तब हम इन चीजों को वहां यूज करते हैं. नेक्स्ट वन. Next one. This is again anterior pituitary produce 2 gonadotropic hormones, follicle stimulating FSH or luteinizing hormone, works with the follicle stimulating hormone to prepare the female body to nourish a developing child during pregnancy. इन दोनों के होने से ही हमारी पूरी सृष्टि की अवधारणा है. अगर ये सृष्टि अगर जीवित है तो ये दोनों हार्मोन्स का होना बहुत जरूरी है. तो इसलिए ये अगर हम बात करेंगे, अभी हम आगे चलेंगे, जब हम गर्भ पोषण की बात करेंगे तो गर्भ पोषण, गर्भ की अवधारणा, गर्भ की जो है स्थिति बनाए रखना, इनमें इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं. आगे नेक्स्ट वन सर. Posterior lobe of pituitary gland secretes 2 hormones. ADH controls the reabsorption of water from the kidneys into the bloodstream. Lack in this hormone causes bloodstream not to reabsorb water from kidneys and urine and is found in excess amount. It causes diabetes insipidus, excreting almost 10 gallons of urine per day. In Ayurveda, it is mentioned as प्रमेह. कहीं कहीं हस्ती में की परिभाषाएं भी दी हैं. कई प्रकार के 20 प्रकार के बताए गए हैं. कफश प्रमेह की बात करेंगे या पित्तवातिक प्रमेह की बात करेंगे या पित्तज प्रमेह की बात करेंगे. कई प्रकार के हमारे यहाँ कितना इलेबोरेटिव प्रमेह के बारे में बताया गया. मॉडर्न में सिर्फ और सिर्फ अगर हम देखेंगे तो हम कोरिलेट करने का प्रयास करते हैं मधुमेह के साथ में, लेकिन बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स को इंटीग्रेट करते हैं. नेक्स्ट वन प्लीज. तो प्रमेह की हमने यहाँ से जोड़ने का प्रयास किया है. ऑक्सीटोसिन या ऑक्सीटोसिन causes the contractions which lead to childbirth. Oxytocin hormone also increases blood pressure and decreases the formation of the urine during pregnancy. In Ayurveda, it is mentioned as AVI. So it is called AVI. इन आयुर्वेदा इट इज मींस आवी. आवी अगर हम बात करें, लेबर पेन की बात करते हैं, तो उसको हम मान सकते हैं जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उसको अपन लेकर के चल सकते हैं. ये है. तो नेक्स्ट वन, ये भी उसी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है. जब हार्मोन की बात करेंगे, आवी का भाव हार्मोन से ही जुड़ा हुआ है. नेक्स्ट वन प्लीज.
TSH causes thyroid to work. Thyroid gland uses iodine and the amino acid tyrosine to produce the hormones thyroxine and triiodothyronine. Both these hormones regulate cellular metabolism. Metabolism refers the processes that make energy for cells. As such, these hormones regulate the conversion of glycogen to glucose. Thyroxine deficiency results in a reduction in the metabolism rate called hypothyroidism. If hypothyroidism occurs during infancy or childhood, the result is called cretinism. Cretinism is characterized by the physical growth and mental retardation. तो हम कई प्रकार के जो हमारी व्याधियां हैं हम बात करते हैं हमारे, उन व्याधियों की यथास्थान जहां जहां उनको हम जब, क्योंकि बेसिकली मैं फिर उसी बात पे आना चाहूंगा, हम जब भी बात करेंगे हमारी थ्योरी की बात करेंगे तो इन टर्म्स को हम वहां यूज नहीं कर सकते हैं। हम जहां इन टर्म्स को यूज करने की बात आएगी तो वहां हमें अग्नि पर ही जाना पड़ेगा। तो उस कंसेप्ट को मैं लेकर के आऊंगा, उसको भी आगे जहां पॉइंट आएगा वहां पे इसको बात करूंगा। तो हम इनको समझते हुए फिर आगे इनको उनके साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। इसलिए मैं बार बार मैं बीच में आपको इस बात पे भी एंगेज करता चला जा रहा हूं। नेक्स्ट वन प्लीज। नेक्स्ट, एक बार मॉडर्न वाला सारा एस्पेक्ट एक बार गो थ्रू हो जाए। ऑन द कंट्री, हाइपरथायराइडिज्म रिजल्ट्स फ्रॉम एन ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन। द सिम्टम्स ऑफ हाइपरथायराइडिज्म इंक्लूड रैपिड हार्ट रेट, increase in blood pressure, increase in metabolism, oily skin, and increase in body. A goiter is an enlarged thyroid gland which results in a swelling in the neck. A goiter can result from either hyper or hyperthyroidism, but it is more common in hypothyroidism. A goiter is generally caused by a lack of iodine. मॉडर्न कहता है लैक ऑफ आयोडीन, लेकिन जब हम आयुर्वेद की बात करेंगे तो आयुर्वेद में कहा गया है गलगंड। तो अगर हम गलगंड को जब पढ़ेंगे तो ये चीजें उसी से मिलती जुलती देखने को मिलेंगी, उनके रेफरेंसेस देखेंगे तो उन्हीं से मिलती जुलती मिलेंगी। तो कहने का अभिप्राय ये है कि गलगंड अगर है तो उसकी स्थिति मॉडर्न में भी होगी। ऐसा तो है नहीं कि आज की डेट में गोइटर नहीं होगा या आज की डेट में गलगंड नहीं होगा। इसका नॉमेनक्लेचर गलगंड का हमने गोइटर के रूप में किया है, वो हम उसको उसके साथ में एक कोरिलेट करने का प्रयास कर सकते हैं गलगंड को। नेक्स्ट वन प्लीज। ये वापस हाइपरथायराइडिज्म के बारे में बताने का प्रयास किया डायग्राम के माध्यम से, क्या क्या वेरिएशंस देखने को मिलते हैं उसमें। नेक्स्ट वन प्लीज। Parathyroid hormone, small 4 glands. These produce parathyroid for the regulation of calcium, phosphate ions in blood, important in nerve and muscle functioning and in maintaining bone structure. Vitamin D is important for the parathyroid glands as this process promotes retention of calcium and phosphate. Without sufficient vitamin D, bones become soft and bent. This disease is called rickets. हम जब बात करते हैं फक की, जब हमारे यहाँ बात की गई है तो फक रोग इस बीमारी को ही इंगित करता है। वो हम हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ही ये प्रॉब्लम डेवलप होती है, उसके साथ इसको समझने का प्रयास कर सकते हैं। नेक्स्ट वन प्लीज। So adrenal gland is located on the top of each kidney. Each has 2 distinct regions, outer area, inner area. Cortex produces corticosteroids, corticoids are steroids. Cortex have 3 layers which produce, जैसे बात है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स आउटर लेयर से है, इन मिडल लेयर से है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स इनर लेयर से रिलीज होते हैं। तो ये जो स्टेरॉइड्स हैं इनका बेसिक फंक्शन क्या है आप जानते हैं। हमारा सर्वाइवल, कई सारी चीजें हैं। अभी जो कुछ भी हम कर रहे हैं, मैं बोल पा रहा हूँ, मैं चल पा रहा हूँ, मूवमेंट कर पा रहा हूँ, जो ऊर्जा का खपत है, जो कुछ भी है, उन सब के पीछे कहीं ना कहीं इसका भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। मेटाबॉलिक रेगुलेशन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिसोल्स, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, एल्डोस्टेरॉन, रिप्रोडक्टिव फंक्शंस, गोनाडल स्टेरॉइड्स, टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजेंस। तो ये सारे के सारे रोल्स प्ले करते हैं। हम आजकल कई बार सुनते हैं, अभी हम जब देखेंगे जो एंड्रोजेंस की बात करेंगे, जो हमारा जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी की बात आती है, देखें तो हमारी एक्टिविटी, हमारी क्षमता, हमारी जो कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाने का काम करती है। तो डोपिंग, जो आपने कई बार नाम सुना होगा, डोपिंग की बात आती है, तो वो उससे जो अर्थात हमारी जो क्षमता है, हमारी जो पॉसिबिलिटीज हैं, उसको बढ़ाने का रोल प्ले करता है ये हार्मोन। तो ये आल्सो जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज हैं उनको भी टैकल करता है, स्ट्रेस रिस्पॉन्स को भी टैकल करता है,
बोन मेटाबॉलिज्म को टैकल करता है, कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को टैकल करता है, बिहेवियर और कॉग्निशन एंड मूड को टैकल करता है, एक्सेस और अगर हम हाइपो की बात करेंगे तो दोनों का इफेक्ट पड़ेगा, बढ़ाने का काम करेगा और घटाने का भी काम करेगा, दोनों एस्पेक्ट में इसका रोल प्ले होता है। नेक्स्ट वन प्लीज। Aldosterone, that is main mineralocortical functions to cause the kidneys to reabsorb sodium and excrete potassium, keeping these two ions in balance. Hydrocortisone, that is main glucocorticoid, helps to regulate the metabolism of carbohydrates, proteins, and fats. Glucocorticoids cause a rapid destruction of certain white blood cells, thereby lowering our resistance to disease. Because they depress the immune system, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स आर यूज्ड टू ट्रीट मेनी ऑटो इम्यून डिजीजेस। इनका हम कई बार देखते हैं, इनका हम इन डिजीज को ठीक करने में, ऑटो इम्यून डिजीज को ठीक करने में इस हार्मोन का उपयोग करते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोकार्टिकॉइड्स is under the control of adrenocorticotropic hormone ACTH through by pituitary। तो अगर हम देखेंगे इनका कंट्रोल, जैसे हमने पहले भी कहा था कि पिट्यूटरी का रोल है पूरा जो है उसमें जो है हमारी एक्टिविटीज को, हमारे हार्मोनल जो एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करने में। तो ACTH एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जब वहां से रिलीज होगा तो इट्स ए चैनल, एक तरीके सिग्नल देने का काम करता है और उसके बाद में ये ग्रंथि आगे प्रोडक्शन का काम करती है। तो उनके साथ तारतम्य के साथ में एक एमओयू है, उस एमओयू के तहत ही काम हो रहा है वहां पे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट वन। और ये थर्ड ग्रुप जो स्टीरॉइड्स और एंड्रोजेनिक स्टीरॉइड्स की बात कर रहे हैं या सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन इज द मेन एंड्रोजन, व्हाइल एड्रिनल्स ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स प्रोड्यूस नियर इक्वल अमाउंट्स ऑफ एंड्रोजेंस। मेल्स हैव एन एडिशनल सप्लाई ऑफ एंड्रोजेंस फ्रॉम द टेस्टिस। Lack of gluco and mineralocorticoids causes Addison's disease and symptoms of electrolyte imbalance, fatigue, muscular weakness, vomiting, diarrhea, weight loss, low blood pressure and excess pigmentation of skin, bronzing। ये जो वर्ड्स हैं, अब हम क्या है कि हम बेसिकली अगर हम चिकित्सा क्षेत्र की बात करेंगे तो ये जितने भी सिम्टम्स मैंने यहाँ पॉइंट आउट किए हैं, ये पॉइंट आउट हमारे यहाँ भी हमारे नाम से उपयोग हो गए। हम डायरिया की बात करेंगे तो अतिसार की बात करेंगे, हम वेट लॉस की बात करेंगे तो हम जो है क्षय की बात करेंगे, लो ब्लड प्रेशर एंड एक्सेस पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। ये कहीं ना कहीं हमारे लो ब्लड प्रेशर का हमारे ऐसे जो रूप में नहीं बताया गया है कि ब्लड प्रेशर को क्या करें, लेकिन हम उसको किसी तरीके से शायद जो है रक्त दोष के अंतर्गत उसको ले सकते हैं। और एक्सेस पिगमेंटेशन ऑफ स्किन हमारे रोग के अंतर्गत है ही, उससे हम रोगों की कल्पना करते ही हैं। तो ये जितने भी टर्म्स हमारे आयुर्वेदिक टर्म्स होते हैं, हो सकता है सारे मैं अभी नहीं ले पा रहा हूँ, तो जो क्लिनिकल हमारे एस्पेक्ट के जितने भी लोग होंगे बेटर जानते होंगे, वो सारे इन रोगों को समझते होंगे कि ये रोगों की एक्सिस्टेंस सिर्फ उनमें ही नहीं है। फैटिक की बात करेंगे, क्लम की बात करेंगे। तो इस प्रकार से ये जितने भी हमारे शब्द हैं, इनको हम आयुर्वेदीय टर्मिनोलॉजी में जब हम समझने का प्रयास करेंगे तो हम देखेंगे कि ये जितने भी टर्म्स हैं हमारे रोग में, हमारे सिम्टम्स में, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसी प्रकार एडिशन डिजीज को हम समझ सकते हैं, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी देने का प्रयास किया है। नेक्स्ट वन प्लीज। Excess of ACTH or tumor in cortex results in Cushing's disease, Cushing syndrome भी कह सकते हैं, with symptoms of obesity, high blood pressure, round moon face, muscular weakness, a tendency to bruise easily and poor healing of skin lesions। फिर वही इनको हम किस प्रकार से देखें, इनके लिए जो टर्म्स हमारे यहाँ जो आयुर्वेद में जो रोग की दिशा में बताए गए हैं उनके साथ कोरिलेट करते हुए हम कशिंग्स जो डिजीज है उसको हम समझने का प्रयास कर सकते हैं। और ये ACTH की वजह से पॉसिबल हो पा रही है, ACTH की वजह से ही हो रही है। नॉर्मल कंडीशंस में कुछ नहीं है। अब नॉर्मल कंडीशंस में आइदर साइड में आइदर एडिशन और कशिंग, दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रेरी कंडीशंस हैं। नेक्स्ट वन प्लीज। Adrenal medulla produces epinephrine and noradrenaline involved in the stress reaction called the fight or flight response। दो ही चीजें होती हैं, अगर आप कर पाने की स्थिति में हैं तो करेंगे, अगर आप कर पाने की स्थिति में नहीं है तो आप छोड़ देंगे, आप हार मानेंगे या भाग लेंगे वहां से।
तो व्हेन कन्फ्रंट ये जो कंडीशंस ऑफ फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स की बात कही है, दोनों ही कंडीशन में हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, और एक्स्ट्रा एनर्जी की आवश्यकता करने के हिसाब से दीज हार्मोन्स कंस्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल्स ऑफ द किडनीज एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, dilate blood vessels in the heart and brain, raise blood pressure and increase the respiration. They rapidly convert glycogen to glucose so that we might have extra energy. क्योंकि हमको उस निर्णय को तुरंत लेना है, ये जरूरी नहीं कि हम भागने की कंडीशन में हैं, अगर हम कोई सोच रहे हैं तो उस कंडीशन में भी अगर हमको कोई डर लग रहा है या हम कहीं उसमें जा रहे हैं कंडीशन में, तो भी हमारे ये चीज सिस्टम डेवलप होगी, तो उसमें फाइट करना, स्ट्रेस की कंडीशन में भी फाइट और फ्लाइट वाली बात हो रही है। तो हर चीज में जहां भी अगर अपन देखेंगे, आप देखेंगे आपको डर लगता है, आप किसी वजह से उसमें जा रहे हैं, तो उसमें भी अगर आप देखेंगे आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा। तो हार्ट बीट बढ़ना बेसिकली क्या चीज है? हार्ट बीट बढ़ना मतलब आपके शरीर की एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ऐसे एक्टिविटी का बढ़ने का मतलब ये है कि आपको एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत के लिए आपका जो हार्मोनल सिस्टम है, इसको एक्स्ट्रा फंक्शन करना पड़ेगा, एक्सेसिव फंक्शन करना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ जो बात की है, जब ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की राजसिक और तामसिक भाव की बात की, वो राजसिक और तामसिक भाव इनको नियंत्रित करते हुए क्रमशः सात्विक भाव पे लेके आता है। फाइट और फ्लाइट जो भी है वो राजसिक भाव की ओर लेके जा रहा है, और जैसे ही आपकी वो कंडीशन खत्म होगी तो वापस अगर आपका राजसिक भाव था, अगर आपको बढ़ाना पड़ा है तो कम करके उसको सात्विक पे लेके आएगा, और अगर आप रिलैक्स्ड हैं तो तामसिक भाव में है तो तामसिक भाव से अगर आपको राजसिक भाव में आना पड़ेगा तो तामसिक भाव से उसको ऊपर लेकर के आएगा सात्विक कंडीशन। तो ये वेरिएशंस हैं जिसको हम समझने का प्रयास कर सकते हैं। नेक्स्ट वन प्लीज, नेक्स्ट वन प्लीज। अब ये बस एक दो और बचे हैं, इनको खत्म करके हम नेक्स्ट चलेंगे। तो पेनक्रियाज लाइज बिटवीन द किडनी सेल्स Pancreas- नोन एज द, ऐसा हाँ, कुछ नहीं सर। pancreas lies between the kidney cells known as the islets of Langerhans are scattered throughout the pancreas. These are two types of cells, alpha cells and producing glucagon and beta cells producing a hormone called insulin. डेल्टा पे अपन ज्यादा नहीं जाएंगे, उस पर ज्यादा काम ऐसा आज की डेट में हुआ नहीं है, जहां तक मेरा नॉलेज है। हो सकता है आपके पास कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन हो, पर अभी ज्यादातर वो assumptions ही हैं। तो इंसुलिन escorts glucose across cell membrane. Its deficiency bans glucose entry in cell and causes loss of energy, whereas glucagon causes the liver to convert more glycogen to glucose, thereby raising the blood sugar level. तो जैसे हम देखते हैं ब्लड शुगर लेवल है, उसको बढ़ाने का हमारे नॉर्मल जो हमारा जीवन है उसके लिए एक लिमिटेड कंडीशन में शुगर का मेंटेन रहना जरूरी है ब्लड में। उस लेवल को मेंटेन का काम करते हैं आपके जो पेनक्रियास से जुड़ा इंसुलिन है, वो उसको मेंटेन करने का काम करता है। तो इस प्रकार से पेनक्रियास का रोल हम देख रहे हैं जो है मेंटेन करना। आगे जब हम बात करेंगे तो मधुमेह रोग की जो बात की है विशेषता, हमारे यहाँ मधुमेह आयुर्वेद में नहीं माना गया। हमारे यहाँ जब बात करेंगे तो वहाँ मधुमेह इस रूप में नहीं माना गया। 20 प्रमेह की चरक ने बात की है, मधुमेह की आगे बात हुई है, वो बात अलग है, लेकिन देखा जाए तो 20 ही प्रमेह मूलतः माने गए हैं। तो उन 20 प्रमेयों में हम किसको वातिक प्रमेय को मान सकते हैं या किसको मान सकते हैं, वो मैटर ऑफ डिस्कशन है। लेकिन कहीं ना कहीं ये मान करके चलते हैं कि ये रोल भी उसमें प्ले करता है पेनक्रियास। नेक्स्ट वन प्लीज। Lack of insulin causes diabetes mellitus. आधुनिक मतानुसार symptom of diabetes include loss of weight, excessive thirst, increase of urination, itching in the skin, and fatigue. High blood sugar level causes sugar to be excited in urine. High volumes of water are needed to remove the sugar from the kidneys. Since water is used for this purpose, thirst occurs to replace this lost water. क्योंकि पानी की ज्यादा आवश्यकता है, तो पानी अगर बॉडी से ज्यादा निकलेगा तो निश्चित रूप से एक थर्स्ट, जब वाटर लेवल बार बार यूरिनेशन होगा तो हमें एक तरीके से जो है डिहाइड्रेशन होने की कंडीशन होती है, तो पानी की हमको ज्यादा जरूरत पड़ती है, इसीलिए प्यास लगती है। इसलिए जब भी बात करते हैं तो हम कई बार कहते हैं इसमें क्लोम का इन्वॉल्वमेंट करने की बात करते हैं कि क्लोम का इसमें रोल है कहीं ना कहीं, और कहीं इसी भाव से लेते हुए पेनक्रियास को भी कई लोग क्लोम के नाम से हम उसको आइडेंटिफाई करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट वन।
Hypoglycemia occurs when the pancreas produces too much insulin. Since insulin escorts glucose across the cell membrane, there is much sugar inside the cells and low blood sugar level. This low sugar is led by the hypothalamus and causes a perception of hunger. Therefore, hypoglycemics appear to be hungry almost all the time. For this reason, hypoglycemics often eat excessively and gain weight. नीड ऑफ आवर है, ऐसा उनको लगता है, और नेचुरली कहीं ना कहीं हाइपोग्लाइसीमिक है तो भूख लगनी ही लगनी है, क्योंकि वो जो उसके सिम्टम्स हैं, जो है वीकनेस लगना या वो सब चीजें उनके माध्यम से, इसीलिए उनको रेगुलर खाने का रहता है कि यार लग रहा है इसी कारण हो रहा है, थोड़ा और खाते हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम डेवलप होने की वजह, उसके कारण उनको ओबेसिटी भी हो सकती है, वेट गेन हो सकता है। नेक्स्ट वन प्लीज। अब ये गोनेट्स की बात करेंगे तो गोनेट्स आर ovaries, females and testes producing ovum and sperm and respective hormones. Sex hormones function between 12 to 15 years of age when boys and girls reach puberty, bringing a child to adolescence. Puberty begins when pituitary releases gonadotropic hormones acting on gonads, causing them to be functional. This makes one reproductively mature and gonads to increase the production of sex hormones. Sex hormones produce secondary characteristics such as facial hair in males, the appearance of breasts in females, pubic and axillary hair in the armpits, voice differentiation for both sexes, and the other characteristics which describe men and women. इनको separate जो है आइडेंटिटी देने का काम करते हैं। तो ये दोनों रोल प्ले करते हैं आपके गोनेट्स, ओवरीज एंड टेस्टिस, और जो है सेकेंडरी हार्मोन्स को डेवलप करने का काम करते हैं। हालांकि इनका भी कंट्रोल वहीं से है, मैंने जैसे पहले कहा था पिट्यूटरी से ही कंट्रोल है, ऊपर से ही आएंगे। FSH, LH की बात करेंगे तो उनके माध्यम से ही क्रियाएं धीरे धीरे डेवलप होती हैं। नेक्स्ट वन प्लीज। अब इसमें अपन अब आते हैं अपने आयुर्वेद की ओर आने का प्रयास करते हैं हम। अब ये जो हमने सारा देख लिया है तो हम अपने एस्पेक्ट पर चलते हैं कि अब हम क्या समझें, यही विषय एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। तो आयुर्वेद हैज नो रेफरेंस ऑफ ग्रंथि शरीर, आयुर्वेद में कहीं ग्रंथि शरीर ने नहीं कहा, इसीलिए बार बार कहते हैं कि हार्मोन्स कैन बी अंडरस्टूड। ये जो हमारे आयुर्वेद हैं, यही इनको हम अग्नि समझ सकते हैं, विच फॉर्म वेरियस धातुज एंड फंक्शंस, ऑल द प्रोसीडिंग्स ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो चूंकि ग्रंथि शरीर हमने एंडोक्राइनोलॉजी माना है, एक्सोक्राइनोलॉजी को हम ग्रंथि शरीर के रूप में बहुत कम मानते हैं, उसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस उस रूप में नहीं है, मूल स्वरूप एंडोक्राइनोलॉजी का ही है। तो एंडोक्राइनोलॉजी जो हार्मोन्स रिलीज कर रहे हैं, वो हार्मोन्स बेसिकली अगर हम देखेंगे हमारा जितना भी शरीर का फंक्शन है, अब हम इस पे चलते हैं तो देखेंगे कि हमारा जो अग्नि जो हमारे यहाँ मानी गई है, वो अग्नि ही सारी क्रियाओं को कर रही है। जब हम आयुर्वेद की बात कर रहे हैं, देयर आर 13 अग्निस, 13 प्रकार की अग्नियां मानी गई हैं। 7 धातु अग्नि हैं, 5 महाभूताग्नि हैं और 1 जाठराग्नि। Defining Agni versus with special reference to hormones needs discussion. The functional mechanism at the cellular level is to produce energy as a result of oxidative metabolism. This functional mechanism is similar to the following definition of Agni. अब ये कई बार हम बात करते हैं कि हमारा शरीर कैसे चल रहा है, हम किसको अग्नि माने। अग्नि के कई स्वरूप है, अगर अपन देखेंगे तो जैसे कि आयुर्वेद में बताए हैं, सबसे पहला स्वरूप जो अपन बात करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है वो जाठराग्नि। बिना जाठराग्नि के भोजन का पाचन नहीं होगा। और जाठराग्नि किसके माध्यम से एक्टिवेट होगी, वहां कई प्रकार के हार्मोन्स हैं, वो भी एंडोक्राइन हार्मोन्स हैं। अगर हम बात करेंगे, जब हम लिवर की बात करते हैं, पैनक्रियास की बात करते हैं, तो वहां एक्सोक्राइन हार्मोन्स हैं, वो रोल प्ले करते हैं पाचन करने के लिए। तो अग्नि जहां बात की है धातु अग्नि और 13 प्रकार के महाभूताग्नि। टिश्यू की बात करेंगे, जब हम बात करें हमारा टिश्यू 7 प्रकार के, वहां रस, रक्त, मांस समेत अस्थि, मज्जा और शुक्र। और महाभूत की बात करेंगे तो खम, वायु, अग्नि, क्षिति, रापा, है ना। ये इस प्रकार से आकाश जो है ना, खम, वायु, आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल, ये 5 प्रकार के तत्वों से बनकर के ही शरीर बना है। और इस एस्पेक्ट को हम कोई भी झुठलाने की कंडीशन में नहीं है। तो ये बेसिकली पंचमहाभूत
और इन पंचमहाभूतों से ही सारा स्ट्रक्चर, सारी धातुएं बनी हैं। तो अल्टीमेटली वो पांच भौतिक पाचन और दूसरा धातु, धातु जो हमारा पांच भौतिक तो हमारा स्ट्रक्चर हो गया, जिसको हम ये समझ सकते हैं कि हमारा जो हमारा कंपोजिशन है सॉलिड, जो हमारा फिजिकल कंपोजिशन है, जो हमारी बेसिक एलिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे धातुओं का निर्माण करते हैं। तो जितनी भी धातुएं हैं सारी के सारी पांचभौतिक स्वरूप से ही बनी हुई हैं, सबका पांचभौतिक कंपोजिशन है, इस प्रकार से अपन मान करके चल सकते हैं। तो जब धातु की बात करेंगे, हम उस पे जाते हैं। जब सुश्रुत ने कहा है क्योंकि क्षणतम गर्भाशयस्तम आत्म प्रकृति विकार समोषितम गर्भित्युच्यते, जब कहा तब उन्होंने कहा तम चेतनावस्थम वायु एनम विभजति तेजा एनम पचति आकाह। तो इस प्रकार से भौतिक व्यापार की बात कही है। ये भौतिक व्यापार क्या है? एक प्रकार से यूं मान करके चलें कि ये सारी क्रियाएं हो रही हैं, पांच भौतिक क्रियाएं हो रही हैं। तो जैसे मैंने कहा कि धातु का निर्माण कैसे होगा? अगर धातु के निर्माण की बात करेंगे तो जल तत्व है, जल तत्व जल महाभूत है। तो जल महाभूत के जो परमाणु हैं उनको मान करके चल सकते हैं। हो सकता है आप मेरी बात से अग्री करें नहीं करें, मैं मेरा पक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूं, हो सकता है मैं गलत भी हूं। तो जब हम धात्वाग्नि और भौताग्नि की बात करते हैं तो दोनों तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। तो सूक्ष्म स्वरूप पर देखेंगे तो सूक्ष्म स्वरूप में सारे के सारे पंच महाभूत हैं, और स्थूल स्वरूप में देखेंगे तो अपन देखेंगे ये मैक्रो स्वरूप है अपना, धातुएं पांच भौतिक स्वरूप में देखने को मिलती है हमसे धातु। तो एक कंबाइंड, एक कंपोजिट स्ट्रक्चर के रूप में धातुएं देखने को मिलती। तो पांच भौतिक स्ट्रक्चर, जो आहार आपने लिया है, उस आहार को, जो आपने पांच भौतिक आहार को लिया है, सबसे पहले उससे पंच महाभूतों की वृद्धि होना जरूरी है। सामान्य से वृद्धि जाती, सामान्य से सामान्य की वृद्धि होगी, और सामान्य और विशेष से उसका क्षय होगा। चिकित्सा का मूलभूत सिद्धांत है। तो धातु अगर वृद्धि हो रही है तो हम क्या कर रहे हैं? पांचभौतिक आहार ले रहे हैं। तो पांचभौतिक आहार लेंगे तो पांचभौतिक आहार में अगर हम धातु को बढ़ाना है तो उस महाभूत से संबंधित आहार लेंगे। आजकल आपने देखा होगा हमारी इन दिनों में बहुत, जो हमारा जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ी है वैसे वैसे हमारी थेरेपीज भी बढ़ती चली जा रही हैं। आपने देखा होगा कोई मात्र धातु चिकित्सा कर रहा है, कोई पांचभौतिक चिकित्सा विशेषज्ञ है, कोई मर्म चिकित्सा विशेषज्ञ है, कोई योग चिकित्सा विशेषज्ञ है। तो इसी प्रकार से आजकल पांचभौतिक चिकित्सा विशेषज्ञता भी एक तरीके से डेवलप हो गई है। कुछ विशेषज्ञ इस रूप में भी चिकित्सा कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करेंगे कोई भी धातु बनेगी तो किस रूप में, ये बहुत बड़ा विषय आता है। कैसे हम पंच महाभूत भूताग्नि किसको मानेंगे और धातु अग्नि किस रूप में अपन समझेंगे? तो जब समझने की बात है तो सबसे पहले हमारे शरीर में जब हमारा विकास हुआ, हम जाइगोट से सीक्वेंशियल रूप में आगे बढ़े, हम 2 से 4, 4 से 8 करते हुए आज हम इस स्वरूप को प्राप्त हो रहे हैं, और निरंतर हमारा स्वरूप बना हुआ है, हो रहा है। हमारे निरंतर तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। अब हम मेंटेनेंस के लिए तत्वों की आवश्यकताएं ले रहे हैं। पहले ग्रोथ के लिए थी, अब मेंटेनेंस कर लिए। अब धीरे धीरे टाइम के साथ में डीजनरेशन होगा। भले ही लेते रहेंगे, कितना भी खा लेंगे हम, लेकिन एक टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के बाद में ऑटोमेटिकली शरीर का सिस्टम डीजनरेट होना शुरू हो जाता है। वेरिएशन देखने को मिलती है। हम बार बार कहते हैं पश्चिम शरदा शतम, 100 साल तक जिए, 100 शरद देखें, वो एक अलग बात है। लेकिन सामान्यतः देखा जाए तो एक कहीं कोई फिक्स नहीं है, पर हर एक आदमी का अलग अलग का एज स्पैन होता है। तो जब हम बात करेंगे, जहां धातु अग्नि की बात करेंगे और पांच भौतिक की बात, तो यही इसी कंसेप्ट को मैं कहना चाहता हूं कि ये जितना भी कंसेप्ट है हमारे पांच भौतिक तत्वों की वृद्धि होना, और पांच भौतिक तत्व हैं तो उनसे फिर हमारे धातुओं का निर्माण होना, इस स्वरूप में हम इसको समझने का प्रयास कर सकते हैं। और ये जो कुछ भी होगा, अगर जो आहार आपने लिया है, उस आहार को जब शरीर में यूज होना है तो वो यूज किसके माध्यम से होगा? अग्नि के माध्यम से ही होगा। तो इसलिए अग्नि महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अब वो अग्नि, जैसे हम बात करें, कई बार मैं चर्चा करता हूं, जैसे हम बात करते हैं सेल्यूलर लेवल की बात करेंगे, मैं ये कह रहा हूं कि सारे तत्व, जो कुछ भी आपने भोजन पचाया है, उस भोजन का उपयोग
पाचन, भोजन का पाचन महत्वपूर्ण नहीं है, भोजन का पाचन हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो हो जाएगा, लेकिन वो भोजन का जो सेल्यूलर लेवल पे जब एब्जॉर्प्शन के बाद में जब वो सेल्यूलर लेवल पे उसका यूज होगा तो ही वो किसी काम का है। प्योरली डाइजेशन से कोई पर्पस ही सॉल्व नहीं होता है। तो हमारा सर्वाइवल बेसिकली सेल्यूलर डाइजेशन के ऊपर करता है। इसीलिए कई बार अपन बात करते हैं तो हम कहते हैं हमारा सर्वाइवल किस पे है। कई क्लास में पूछते हैं कि सब बीएमआर पे, बेसिक मेटाबॉलिक रेट पे बात करते हैं, या हम बात करते हैं सेल कैपिलरी रिस्पांस की बात करते हैं। अगर सेल कैपिलरी रिस्पांस प्रॉपर हो रहा है ना, और जो है जो हमारा जो सेलुलर लेवल पे जो फंक्शनिंग हो रही है उसमें कई सारे एस्पेक्ट्स आ रहे हैं। हम जब अग्नि की दूसरा एक जो बहुत जनरल परसेप्शन लेकर के चलेंगे तो अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन भी, अगर हम मोटा मोटा अगर बात करेंगे तो ऑक्सीजन भी अपने आप में अग्नि का ही स्वरूप है। क्योंकि जब हम शायद बात करते हैं अग्नि प्रज्वलित करने के लिए तो वहां ऑक्सीजन होगी तो ही अग्नि जलने की स्थिति उत्पन्न होगी। इसलिए ऑक्सीजन एक तरीके से अग्नि के स्वरूप में, इसलिए हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस को कहते हैं, वो इसी रूप में कहते हैं। ऊर्जा उत्पन्न, ऊर्जा किससे उत्पन्न होगी? अग्नि की क्रिया के। अग्नि का जो स्वरूप है वही ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। इसलिए जो ये इस विषय पे हम पूरा जो फोकस मैंने कहा था लास्ट में फोकस करेंगे, तो उस रूप में जब हम देखेंगे तो अग्नि का बहुत बड़ा रोल है। और हम इसी, और जब हम बात करें सेल्यूलर लेवल की बात करेंगे तभी एक टर्म मैंने यूज किया था बीएमआर, बेसिक मेटाबॉलिक रेट। अगर ये बीएमआर मेंटेन है तो आप सर्वाइव कर रहे हैं। अगर आप बेसिक मेटाबॉलिक रेट अपना मेंटेन नहीं है तो आप सर्वाइव नहीं कर रहे हैं। सर्वाइव करने का मतलब ये है कि आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं या एबनॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। और अगर रेगुलर हम उसमें मिसमैनेजमेंट करेंगे तो हम कलेप्स करने की स्थिति में भी आ सकते हैं। तो इस रूप में अगर अपन देखेंगे तो ये जो अग्नि तत्व या अब हम आधुनिक पक्ष में देखेंगे बीएमआर, तो बीएमआर कहां से निकलेगा? बेसिकली बीएमआर टारगेट सेल कहां से आ रहे हैं? थायराइड से ही उनका रोल प्ले हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे ये जितने भी हार्मोन्स हैं तो कहां से वो कहां टारगेट कर रहा है? वो पूरी बॉडी को टारगेट कर रहा है, क्योंकि सेल के बिना तो बॉडी ही नहीं है। शरीर अवयवा तो परमाणु भेदेन अपरिसंख्या, जब आचार्य चरक ने ये बात कही तो इससे पूरे के पूरे शरीर में जो सेल्स का भाव था उस पे गया है। और जो हम कहते हैं सबसे शरीर की मूलभूत जो फंक्शनल यूनिट है वो सेल ही है। वो अगर हम देखेंगे तो वो सेल ही है। तो उस रूप में इसकी इंपॉर्टेंस है। तो जो हमने कहा डिफाइनिंग अग्नि वर्सेस हार्मोन्स नीड्स डिस्कशन की जो बात की है, उस रूप में मैंने इसको बताने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार से ये जो 13 अग्नियां, तो जाठराग्नि सबसे पहले, क्योंकि जाठराग्नि ही जो आहार पांच भौतिक आहार लिया है उसको कन्वर्ट करेगी पांच भौतिक तत्वों में। और जब वो पांच भौतिक तत्वों के रूप में परिवर्तित हो गई उसके बाद में वो पांच भौतिक तत्व पूरे शरीर में जाकर के, या वो न्यूट्रिशन, या आप उसको आप विटामिन कह दीजिए, मिनरल्स कह दीजिए, कुछ भी कह दिए, अल्टीमेटली उनके माध्यम से आगे जाकर के ही धातुओं का उत्पत्ति होगी। तो पांच भौतिक पंचमहाभूत उत्पन्न हुए, पंचमहाभूतों पे क्रिया होकर के, कॉम्बिनेशन होकर के फिर हमारी धातुओं का निर्माण होगा जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। आधुनिक मतानुसार भले आप इनको हम 5 एलिमेंट्स और टिश्यूज के रूप में हम इनको व्याख्या करते रहें, लेकिन आयुर्वेदीय पक्ष में हम इसी रूप में 13 धातुएं, हम 13 अग्निज को हम डिफाइन करने की स्थिति में। तो ये जो लास्ट जो लाइन मैंने कही है इसमें फंक्शनल मैकेनिज्म एट द सेल्युलर लेवल इज टू प्रोड्यूस एनर्जी एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म। ये उसी को इंगित कर रहा है कि ये अगर आपका सर्वाइव कर रहा है, जिसको हम कह रहे हैं फंक्शनल मैकेनिज्म एट द सेल्युलर इज टू प्रोड्यूस एनर्जी एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म, दिस फंक्शनल मैकेनिज्म इज सिमिलर टू द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ अग्नि। और यही हमारे जीवन का मूल आधार है। और इसी को जब हम अग्नि की व्याख्या करेंगे, अब मैं अग्नि शब्द की व्याख्या पे आता हूं, व्युत्पत्ति पे आता हूं उसकी। अंगति व्यापनोति इति वा अग्नि। अंगति मतलब, अंगति का अर्थ होता है टू डेवलप, जैसे अग्नि ऊपर की ओर जाती है। अग्नि का स्वरूप जिसको कहते हैं प्रोग्रेसिव है, इस रूप में अगर अपन मान करके चलें, ऐसा समझे, विकासवादी है, या जो है शरीर के विकास से संबंधित जुड़ा हुआ है। उस रूप में अंगति व्यापनोति, व्यापक होती है, व्यापक पूरे शरीर के लिए जो व्यापक शरीर का निर्माण करती है, पूरे शरीर में जो व्यापक है, उस स्वरूप में
अग्नि की व्याख्या हम कर सकते हैं। तो ये अग्नि ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। तो मेरा जो परसेप्शन था वो ये था कि हम अग्नि को हार्मोन्स के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। तो जब हम ग्रंथि शारीर की बात करेंगे तो ग्रंथि शारीर को हम ये मान सकते हैं कि हमारा जो अग्नि शारीर, हमारा जो ग्रंथि शारीर है वो ये 13 अग्नियां हो सकती हैं, जिनको हम 7 धातु अग्नि, 5 महाभूत अग्नि और 1 जठराग्नि, ये हमारा मूलभूत ग्रंथि शारीरम के नाम से हम एक हम इस पे काम करती, मेरा हाइपोथेसिस है कि इस रूप में हम काम कर सकते हैं। तो आयुर्वेदीय ग्रंथि शरीर में इनकी व्याख्या करते हुए हम इसको एलेबोरेटिव वे में, और इनसे होने वाले निश्चित रूप से इन्हीं से सारे रोग होते हैं, धातु अग्नि से और महाभूतों की अग्नि से, इनके माध्यम से ये रोग सारे होते हैं। तो ये इनको हम ग्रंथि शरीर रूप में समझने का प्रयास कर सकते हैं। नेक्स्ट वन प्लीज। नेक्स्ट वन सर। While defining Granthi Shar, it is clear that it is an important part of एक बार पीछे लीजिए सर। हाँ, it is clear that it is an important part of human physiology. This can be verified by scattered references available in Ayurveda texts. The major evidence is the reference of exploration of Ashtaninditi Purush. इसको मैं बता ही चुका हूँ पहले ही, क्योंकि पॉइंट वाइज जहां था वहां अपने को इनको डिस्कस करना जरूरी था। तो Ashtaninditi Purush, disgraceful persons, एक चैप्टर इन चरक संहिता रिफ्लेक्टिंग हार्मोन्स इन आयुर्वेदा। These conditions develop because of the imbalances in hormones. अष्टानिंदित पुरुष जैसे कि आप जानते हैं, अति स्थूल, अति कृष्ण, अति लोम, अति अलोम, अति दीर्घ, अति ह्रस्व, अति गौर, अति कृष्ण, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से ही ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन प्लीज। It is clear that all these Ashtaninditi Purushas develop from hormone. This can be understood as Granthi. There are many other references also in Ayurveda. There are many other references in Ayurveda classics where we can identify the hormone related disorders, as in chapters related to Galgand, Prameh, स्त्री रोग, अपरा निर्माण एंड मैनी मोर। जब हम बात करेंगे गलगंड, जैसे मैंने पहले कहा था, गलगंड को हम कोरिलेट कर सकते हैं उसके साथ में जो है थायराइड के कनेक्शन के साथ में, गोइटर के साथ में, थायराइड के साथ में जोड़ते हुए देख सकते हैं। अब उसमें गलगंड में हमारे कौन सी धातु की दृष्टि है, कौन से महाभूतों की दृष्टि है, उसको कोरिलेट करते हुए हमारा, जैसे मैंने कहा ना, ग्रंथि शारीर, आयुर्वेदिक ग्रंथि शारीर की अगर कल्पना करनी हो तो हम गलगंड जो हमारा बताया गया, उस गलगंड को उस रेफरेंस में हमारी धातुओं के कसौट जैसा बताया भी है हमारे, मैं उस पर डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, इतना डिटेल पे मैं नहीं जाना चाहता था मैं, वो तो बहुत ज्यादा फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट हो जाएगा हमारा, उस पर जाएंगे तो गलगंड के जो कारण है उसमें कौन से धातु दूषित होते हैं, कौन से क्या होते हैं, वो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जो हम बात करेंगे तो उसी से जुड़े हुए हैं हमारे जो थायराइड से जुड़े हुए जो हार्मोन्स हैं या उनसे जुड़े हुए, उनसे कहीं ना कहीं कारण देखने को मिलेंगे। ऐसे प्रमेह की बात करेंगे तो प्रमेह कहीं ना कहीं हमारा उससे जुड़ा हुआ मिलेगा अपने को, पैनक्रियाटिक जो हमारे सेक्रेशंस हैं उनके साथ में जुड़े हैं। स्त्री रोग, अगर हम स्त्री रोग की बात करेंगे, जैसे पीसीओएस है, पीसीओडी है, या एमेनोरिया है, या जितने भी ये प्रकार के व्याधि, या ग्रहों की बात करेंगे जितने भी हमारे, तो कहीं ना कहीं, या फिर अपरा निर्माण की बात करेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या बात करेंगे और भी अधिक। अपरा निर्माण की बात ले लें, अपरा निर्माण क्या है सर? अपरा निर्माण भी तो प्लासेंटा, प्लासेंटा क्या हार्मोन है? प्लासेंटा कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है? सब पीआरएल रिलीज करता है। पीआरएल किससे जुड़ा हुआ है? सब प्रोलैक्टिन से जुड़ा हुआ है, ग्लूकोज। वो पीआरएल, प्लासेंटल प्रोलैक्टिन, और फिर जो पिट्यूटरी से रिलीज होने वाला है प्रोलैक्टिन, ये दोनों जब मिलेंगे तो इनका टारगेट एरिया कौन सा होगा? इनका टारगेट एरिया होगा ब्रेस्ट, तो ब्रेस्ट डेवलप होंगी। तो अपरा निर्माण, अपरा निर्माण के माध्यम से गर्भ का निर्माण हो रहा है, वो हाइड्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। अगर गर्भपात होता है तो प्रोजेस्टेरॉन की बात करेंगे, इसकी ऑक्सीटोसिन की बात करते हैं, या डिलीवरी की बात होगी तो ऑक्सीटोसिन की बात करेंगे, ईस्ट्रोजन की बात करेंगे। आपने देखा है कि डिलीवरी करवानी होती है तो जब आवी उपस्थित नहीं होते हैं तो ईस्ट्रोजन का इंजेक्शन दे करके, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दे करके और डिलीवरी करवाने के प्रयास होते हैं। अगर गर्भ की स्थिति मेंटेन नहीं हो रही है तो प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शंस दे करके गर्भ की स्थिति को बनाए रखने का प्रयास किया जाता है 9 महीने तक। क्यों? जो आजकल की लाइफस्टाइल का इश्यूज हैं कई प्रकार के, कि हम गर्भ को कैसे मेंटेन रखें। आजकल जो 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 लेथार्जिक लाइफस्टाइल है हमारा,
पर्टिकुलरली फीमेल्स का, तो हमारी जो ये जो रीजन है, जो पर्टिकुलर है, पुराने जमाने में हम देखेंगे, हम कई बार बात करते थे, हमारे टीचर्स हमको बताया करते थे, हमारे फैमिलीज में हमने देखा होगा कि महिलाएं पानी भर करके लाती थी, महिलाएं आटे में चक्की पीसती थी। वो ये जो भाव थे, इन भाव के पीछे कपड़े धोने का काम करना, इनके पीछे जो भाव होते थे, इनका सारा प्रेशर अगर आप देखेंगे तो सारा प्रेशर पेट के ऊपर आता था, और कहीं ना कहीं वो एब्डोमिनल मसल्स के साथ में यूट्राइन मसल्स के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट जाता था। यूट्राइन मसल्स उनको बियर कर पाने में सक्षम होती थी। तो कहीं ना कहीं ये जितने, मैंने कहा ना, सीडेंटरी लाइफस्टाइल ने हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की। तो जब बात करेंगे अपरा निर्माण है या प्रेगनेंसी है या स्त्री रोग है, ये जितने भी हैं कहीं ना कहीं हम देखेंगे सब अग्नि, ये सब अग्नि से जुड़े हुए विषय हैं। तो उस रूप में हम देखेंगे, इनको हम डिफाइन करने की स्थिति में होंगे। बहुत बड़ा विषय है, इसमें बहुत काम करने की स्थिति में हो सकते हैं। मैं तो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे, मेरी जितनी छोटी सी बुद्धि है, उस बुद्धि के माध्यम से अपने व्यूज को आपको शेयर करने का प्रयास कर रहा हूँ। हो सकता है आप मेरे से भी ज्यादा जानते हो, और मेरा विश्वास भी है कि आपका, क्योंकि मैं बहुत बड़े विद्वानों की सभा में बोलने का दुस्साहस कर रहा हूं। तो हम इस एंगल पे लेते हुए अगर कुछ आपके पास है तो आप कर भी रहे होंगे, हम ऐसा कुछ एक नया एक अपन डेवलप करें तो वो भी अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। नेक्स्ट वन प्लीज। नेक्स्ट वन सर, बस अब समाप्ति की ओर ही है, जल्दी जल्दी करेंगे। नेक्स्ट वन सर, हाँ, वी हैव अर्लियर डिस्कस्ड दैट ऑल द डिसऑर्डर, अपने आगे चला गया सर, एक पॉइंट पीछे ले लीजिए सर। Now, we have earlier discussed that all the disorders develop because of hyperrelease of hormones, complete physiological process, menstruation, that is arthavasrotus, pregnancy and delivery, वही बात को मैं कह रहा हूँ, गर्भावस्था एंड प्रसवावस्था, lactum formation, स्तन्य निर्माण happens due to hormonal physiology। हमारे यहाँ कहा है त्रिधा रसा, जब त्रिधा रसा मतलब गर्भ पोषण की जब बात की, हम 3 प्रकार से पोषण की बात करते हैं, 3 हिस्से बताए गए हैं। 3 हिस्से, पहले हिस्से से माता खुद का पोषण करती है, दूसरे से गर्भ का पोषण होता है, तीसरे से जो है स्तन्य का निर्माण होता है, ऐसा मान करके चलते हैं। ये जो बातें कही गई हैं, इन बातों से कहीं ना कहीं यही है कि आहार, उस आहार के माध्यम से जो हमारे जो गर्भ का पोषण होगा, ये गर्भ पोषण के एस्पेक्ट में कहा है। तो वहां जो स्तन्य निर्माण की जो बात कही है, वो स्तन्य निर्माण कहीं ना कहीं वो PRL और उस प्लासेंटल प्रोलैक्टिन को ही इंगित करता है। These physiological processes are caused by progesterone, oxytocin, PRL, placental hormones like laxin, placental lactogen, HCG. A physician aware of all these hormonal physiology always dominates you. अगर हम देखेंगे, जब हम चिकित्सा करने की बात की, आजकल कहा ना, जैसे हम अग्नि चिकित्सा भी एक अपने आप में देखा जाए तो आजकल अग्नि चिकित्सा भी एक फील्ड डेवलप हो रहा है कि अग्नि की चिकित्सा करेंगे तो सब ठीक हो जाए। अगर आप 13 अग्नियों की चिकित्सा कर सकते हैं तो सब, जैसे हमने कहा पांचभौतिक चिकित्सा, अग्नि चिकित्सा भी एक आध्य हमारी एक कास्ट हो सकता है। आने वाले टाइम में कोई, क्या पता मेरे शब्द, मुझसे शब्द निकला है या कहीं कोई किसी ने कहीं और बात कही हो, तो आने वाले टाइम में इस शब्द को पकड़ करके ही कोई आदमी इस काम को करना शुरू करते हैं हम, क्योंकि आजकल कंपटीशन की भावना है और हर आदमी अलग अलग एंगल से अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहता है। तो कब कौन चीज कौन सी कहाँ से निकल करके आ जाए और कैसे किस रूप में वो डेवलप करेगा। तो अग्नि अपने आप में, अगर आपने अग्नियां, अगर हमारे शरीर की अग्नि ठीक है तो हम बिल्कुल ठीक है, और अग्नि हमारी गड़बड़ है तो हम बिल्कुल अस्वस्थ हैं। तो अग्नि चिकित्सा भी एक माध्यम हो सकता है अग्नि हमारे चिकित्सा क्षेत्र में आगे बढ़ने का। नेक्स्ट वन। Similarly, hyper or hypoproduction of hormones responsible for these are various human systems related to menarche, menopause, other menstruation problems, pregnancy, prostate disorders, diabetes, metabolic disorders, lack of growth, osteoporosis, thyroid। मैंने पहले भी बता चुका, cancers of the endocrine glands, over or underproduction of hormones, cholesterol disorders, hypertension, infertility and so on, ये सभी उससे जुड़े हैं। नेक्स्ट वन प्लीज। ये सब चीजें डिस्कस हो चुकी हैं। हार्मोन्स कैन बी रिलेटेड, अब दूसरे एस्पेक्ट पे और आएंगे सर। हम एक एस्पेक्ट और इसमें जोड़ना चाहते हैं कि हार्मोन्स की बात करें तो हार्मोन्स का रोल कैसे प्ले होगा। हमने अग्नि की बात तो कर दी है, लेकिन अग्नि का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। हम बात करते हैं, चैनल्स की बात करते हैं, तो जैसे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पूरे शरीर में जाता है, हम मान करके चलते हैं। तो क्या हार्मोन्स को हम रिलेट नहीं कर सकते हैं स्रोत के साथ में, क्योंकि हार्मोन्स बेसिकली अग्नि है, लेकिन यहाँ
उस रूप में अगर अपन देखेंगे तो विद स्रोतस आल्सो इन टर्म स्रोतस नेम स्ट्रक्चर कैरिंग समथिंग दैट इज श्रवणात् श्रोतांसि श्रोतोमयम ही शरीरम. So these statements clearly infer that not only 11 pairs or 13 srotas are present in the human body as exocrine tubular structures, but many endocrine or ductless structures are also present there. Srotas carry various dhatus from one side to another side. It is a continuous process at cellular level and is performed both by exocrine and endocrine. देखिए दो टर्म्स यहाँ यूज की हैं. एक तो शब्द यूज किया है श्रवणात् श्रोतांसी, जो 13 प्रकार के स्रोतस की बात की है, वो तो श्रवणात् श्रोतांसी के पक्ष में आ सकता है या 11 प्रकार के उसमें आ सकता है. लेकिन जो दूसरी डेफिनेशन दी है श्रोतोमयम ही शरीरम, तो पूरा शरीर ही स्रोतोमय है, हर जगह स्रोतस अवेलेबल है. तो अब दो चीज हैं, अग्नि का माध्यम करेंगे तो जहां कहीं आचार्यों ने कहा कि योगवाही स्रोतस की बात कही है. अब योगवाही स्रोतस की भी कई परिभाषाएं हैं. कोई कहता है कि सब एक तो जहां से उसका इग्निशन होता है और एक पूरा ट्रैक जो है उसको अपन मान करके चलते हैं कि वो टारगेट पॉइंट तक जा रहा है. तो अगर हम योगवाही की बात करेंगे तो जब वहां बात की है हृदय स्रोतमूल की बात की है, तो वो स्रोतमूल एक तरीके से उसका जो ग्लैंड है या ग्लैंडुलर सिस्टम है या पर्टिकुलर जो है वो उसका ओरिजिन है, उसको मान करके चल सकते हैं. तो इस रूप में अगर अपन देखेंगे तो स्रोतोमयम ही शरीर का जो कंसेप्ट है वो एंडोक्राइन लेवल को हम मान करते हुए चल सकते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं एंडोक्राइन भी इन्वॉल्व होती हैं. एक्सोक्राइन तो है ही है, एंडोक्राइन भी इन्वॉल्व होती हैं. हालांकि यहाँ हम इसको थोड़ा सा इसमें अपवाद भी होगा, क्योंकि सारे के सारे अलग अलग एस्पेक्ट से जुड़े हुए हैं, तो हम इसको अलग रूप से डिफाइन कर सकते हैं. तो अग्नि की जहां बात करें तो अग्नि एक सामान्य सिद्धांत हो सकता है जिसको हम मानने की स्थिति में हो सकता है. लेकिन जहां ग्रंथिशाली की बात करेंगे तो वहां इन दोनों एस्पेक्ट्स को भी हम लेकर के चल सकते हैं. ये विषय डिस्कशन का है, ये मैं ओपन फोरम पे रखने का है कि हम इन चीजों को क्या माने और क्या नहीं माने. इस रूप में स्रोतोमयम ही शरीरम को भी हम इस एस्पेक्ट में ग्रंथिशाली के रूप में समझने का प्रयास कर सकते हैं. नेक्स्ट वन, बाह्य स्रोत, इस पर जाने की आवश्यकता नहीं है, ये सब हम पढ़ते हैं. देयर आर अगेन ग्रुप्ड इन 2 हेडिंग्स. बाह्य स्रोत, स्रोता से खलु परिणामो आपद्यमानम धातु नाम अभिवाहिनी भवत्येन अर्थेन. तो जो भी आपने जो उपयोग में लिया ना, उनका वहन करना. ये वहां बात आ रही है, अपनी वही बात आ गई पांच भौतिक और जो पांच भूताग्नि और धातु अग्नि की बात करने के बाद. तो जब हम पाचन की बात करते हैं तो पाचन स्वरूप हमको पंच महाभूत मिले. उन पंच महाभूत तत्वों से वो पांच भौतिक तत्व जो सार रूप में हमको मिले हैं, उन पांच भौतिक तत्वों को पूरे शरीर में लेते हुए परिणामम आपद्यमानम धातु नाम, उन धातुओं का अभिवहन करती हैं. उनसे धातुओं का निर्माण होगा, क्रमशः धातुओं का निर्माण होता चला जाएगा उन तत्वों के माध्यम से. तो इस प्रकार से स्रोतस की व्याख्या की है. क्या हो सकता, दिस मीन्स धातु अंडरगोइंग ट्रांसफॉर्मेशन आर कैरीड फ्रॉम इट्स रूट टू इट्स टर्मिनल एंड. ये रूट टू टर्मिनल एंड की बात जो की है, ये उस रूप में जो मैं कह रहा था अभी कि इसको भी हम रूट मतलब वो हम ग्लैंड को मान सकते हैं और टर्मिनल एंड जहां पे वो टारगेट एरिया पे जाएगी. एक एस्पेक्ट ये भी हो सकता है, इसमें अपवाद हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन इस एस्पेक्ट्स को भी हम कहीं ना कहीं समझने का प्रयास कर सकते हैं. दूसरा अभ्यंतर स्रोतस, ये एंडोक्राइन लेवल की बात कर सकते हैं. एट एंडोक्राइन द सीक्रेशन ऑफ द ग्लैंड इज आइडेंटिफाइड एज हार्मोन. Hormone maintains homeostasis of body functions. Homeostatic condition equally essentially for the maintenance of the body as well as mental states. Next one. Endocrine secretions of all the nisrotas, granthis, ductless glands maintain equilibrium between tridosh, agni, saptadhatu and mal. जब हम बात कर रहे हैं एंडोक्राइन निस्रोतस ग्रंथिस, डक्टलेस ग्लैंड्स जितने भी हैं, ये पूरे के पूरे शरीर में हम इसको अब आयुर्वेद से देखेंगे या मॉडर्न एस्पेक्ट से देखेंगे. तो आयुर्वेद की जितनी भी ग्रंथियां हैं, चाहे स्रोतोमयम ही शरीरम की बात करेंगे या हम अग्नि की बात करेंगे या मॉडर्न का एंडोक्राइन सिक्रीशंस की बात करेंगे, निस्रोशन ग्रंथि की, ये सब अगर हम देखेंगे तो अगर हम आयुर्वेद की परिभाषा में देखेंगे तो ये वही है कि हम बेसिक कंसेप्ट क्या, त्रिदोष, अग्नि, सप्तधातु और मल, इन सब के बीच में इक्विलिब्रियम बिठाने का है. वो जो परिभाषा दी है अपनी, समदोषा समाग्नि से समधातु मल क्रिया प्रसन्नात्मेंद्रिय मणः स्वस्थित्यभिधीते, उस पूरे क्रम को डेवलप करने का फिजिकल और मेंटल लेवल पे ये पूरा प्रयास इनके माध्यम से होता है. The अंतःस्रावास रेगुलेट बायोलॉजिकल एक्शंस एंड
reactions taking place within body and outside body। तो ये जो अंतःस्राव हैं सारे बायोलॉजिक एक्शन सबको उनको अंदर और बाहर पूरे सिस्टम को जो हमारे एक्शंस हैं उनको कंट्रोल करने का काम करती है। Thus endocrine secretions play a significant role in maintaining equilibrium. This is just like स्रोतस which are throughout not visible by naked eyes yet they act as स्रोतोमूल। तो इस प्रकार से हम इसको उसके साथ कोरिलेट कर सकते हैं जैसा मैंने पहले भी कहा। नेक्स्ट वन प्लीज। चक्रपाणी says the clinical significance importance of स्रोतस है सर्वे ही भावा पुरुषेण नान्तरेण स्रोतांश अभिनिर्वर्तन्ते क्षयं व अप्यधिगच्छन्ति। Increase and decrease of dhatus takes place only through the functioning of स्रोतस। Charak, Sushruta have told different pathological states due to स्रोतो अभिघात एंड स्रोतोरोध। ये दो प्रकार के फंक्शन बताए। हम जब भी देखिए जब हम कई बार बात करते हैं, हम चिकित्सालय में जाते हैं, हम सब लोग रोगी का जो इतिवृत्त भरते हैं तो हम उसमें दूष्य के रूप में स्रोतो दृष्टि को यूज करते हैं। तो स्रोतो दृष्टि से ही सारे रोगों की संकल्पना हम करते हैं। स्रोतो दृष्टि कई प्रकार की हो सकती है, संग हो सकता है, विमार गमन हो सकता है, अति प्रवृत्ति होती या अति प्रवृत्ति क्षयोवा विमार गमन संगो हुआ। तो ये जो एस्पेक्ट है ये इन माध्यम से जो है स्रोतों की दृष्टि परिलक्षित होती है। इस रूप में हम देखेंगे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के हिसाब से जितनी बीमारी हैं वो निश्चित रूप से स्रोतोवरोध के कारण, स्रोतो दृष्टि के कारण होती है। तो जब स्रोतो संग, स्रोतो दृष्टि, अति प्रवृत्ति जितने भी ये लक्षण कहे गए हैं तो ये किसका है? संग किसका हुआ? हार्मोन का अवरोध हुआ, हार्मोन की अति प्रवृत्ति हुई, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उसी से जुड़ रही हैं। तो स्रोतोरोध, स्रोतो अभिघात, ये जो भी एस्पेक्ट हैं ये सारे के सारे कहीं ना कहीं अगर अपन देखेंगे तो अग्नि से या एंडोक्राइन हार्मोन से ही जुड़े हुए हैं। अगर ये निरंतर अविवाहित होंगे तो हमारे शरीर की होमोस्टेसिस बना रहेगा। अगर इसमें किसी प्रकार का भी प्रॉब्लम होगी डिसऑर्डर डेवलप होंगे। नेक्स्ट वन प्लीज। आचार्य से वेरी वैल्यूएबल ऑप्शन। अब मैं कुछ एक रेफरेंसेस देकर के इनको फिर अब खत्म करने की ओर बढ़ेंगे। थायराइड ग्लैंड की बात कही है, देखिए उसी बात अब ये लक्षणों को बताने का प्रयास किया है ग्रंथि में। तो निबद्धा श्वयथुर्यस्य मुष्कवद लंबते गले महान व यदि व ह्रस्वो गलगंडम तमादिशेत। तो ये चरक ने जो एग्जांपल दिया है मैं उसी को कोट कर रहा हूँ। चरक हैज आइडेंटिफाइड गलगंड और गंडमाला एज अ सिंगल और मल्टीपल नोडुलर स्वेलिंग्स इन द नेक रीजन। ठीक है ना। गल से पार्श्वे गलगंडम एकाशात गंडमाला बहुविस्त गंडई। क्लिनिकल साइन ऑफ गलगंडा डिस्क्राइब्ड बाय द सुश्रुत एज वातः कफश्चैव गले प्रविद्धो मन्येतु संसृत्य तथैव मेधा कुर्वन्ति गंडम क्रमशः स्वलिंगै समन्वितम तम गलगंडकम आह। वायु और कफ इनकी हेल्प से मेद और मज्जा एक जो है स्वेलिंग डेवलप करते हैं गले में, जिसको गलगंड के रूप में कहा जाता है, ग्वाइटर के रूप में। अब ये जो भाषा है जो हम इसको कर सकते हैं वायु कफ विद द हेल्प ऑफ मेद एंड मज्जा, तो इनके माध्यम से मेद और मज्जा डेवलप करते हैं। मेद और मज्जा क्या? वायु और कफ तो दोष हो गए, और दूष्य क्या है? मेद और मज्जा। इन मेद और मज्जा को दूषित, इनके माध्यम से, इन दोषों के माध्यम से दूषित होते हैं और वहां स्वेलिंग के रूप में गलगंड को डेवलप करते हैं। अब यही मैं इस चीज को कहना, मैं एग्जांपल सारे देने की स्थिति में नहीं, मैं एक दो एग्जांपल पे ही लाकर के सारी बातों को बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जब हम ग्रंथि शारीर को हम कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो कौन से ऐसे तत्व हैं जिसकी वजह से वो कौन सी अग्नि दूषित हुई है, जिसकी वजह से वायु और कफ और ने मेद और मज्जा को होने से विकृत किया है, वो कौन सा ऐसा तत्व था, उसको हम इसमें समझने का प्रयास करें। तो ये कहीं ना कहीं अगर हम आधुनिक पक्ष तो सीधा सीधा कहता है कि वहां कोई जो विकृति हुई उसके माध्यम से हुआ, लेकिन आयुर्वेद में किस माध्यम से होगा इसको हम समझने का प्रयास करेगा। यहाँ इसी बात को नीचे हम देखें तो चरक ने स्रोतो दृष्टि को रिस्पॉन्सिबल किया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गलगंडा, क्योंकि ये जो नेक वेन्स हैं उनको जो है ऑब्स्ट्रक्शन करता है संग रूप में, इसलिए वहां मेद और मज्जा जो है दूषित होकर के स्वेलिंग को डेवलप करते हैं। ये एक एस्पेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट वन प्लीज। इसी प्रकार हम पेनक्रियास के टू टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन सेल्स, दैट इज बीटा एंड अल्फा सेल्स, सीक्रेट इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन रिस्पेक्टिवली। दीज सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। Ayurveda elaborates
the cause of madhumeh, diabetes as आस्या। अब ये जो इसके कारण जो बताए हैं वो बताए हैं आस्या सुखम स्वप्न सुखम दधीनी ग्राम्य औदक अनुप्रसा पयांसी नवान्नपानम गुडवैकृतम च प्रमे हेतु कफरिच सर्वम। This means luxurious life, excessive sleep, excessive use of curd in diet or whatsoever are there. All these increase kapha dosh and produces diabetes mellitus. Thus it can also be concluded that the increase in kapha dosha develops insulin deficiency and becomes etiological factor for diabetes mellitus. तो इसको हम किस रूप में परिभाषित करें कि इसने कफ दोष को बढ़ाया, क्यों बढ़ाया, कौन सी अग्नि के कारण बढ़ा, कोई कौन सी ऐसी गति के कारण कफ दोष बढ़ा, क्या ऐसा एस्पेक्ट हुआ, उसको समझने के लिए हमें इसमें आकर के काम करना होगा। ये हो सकता है इस पे काम हुए भी हो, मेरी नॉलेज में नहीं हो, जैसे मैंने कहा ना, मेरे पास जो लिमिटेड जो एस्पेक्ट्स है मैं उनको बताने के, जो इंफॉर्मेशन है उसके माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। हो सकता है आप मेरे से भी ज्यादा जानते हो, लेकिन ये इन चीजों पे हम काम करते हुए इसको स्थापित करने की स्थिति में आ सकते हैं ग्रंथि शारीर में, क्योंकि ये ग्रंथि शारीर का ही विषय है और ग्रंथि के माध्यम से ये चीजें डेवलप हो रही हैं जो हमारे यहाँ अग्नि को इंगित करता है। क्योंकि अगर हम आराम करेंगे तो हमारी अग्नि दूषित हो ही होगी, अगर हम लग्जरियस लाइफ जिएंगे तो अग्नि दूषित होगी ही होगी, अग्नि पे उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। नेक्स्ट अधिवृक्क ग्रंथि। नेक्स्ट एक पीछे वाला ले जैसे एक बार, ड्यू टू अभिघात ट्रॉमा और एनी टाइप ऑफ विकृत पैथोलॉजी either there will be excess or deficient secretion of gland. The insufficiency of cortical secretion results in Addison disease and is manifested by muscular weakness, low blood pressure, वर्ण वैषम्य, स्किन पिगमेंटेशन, पांडु, एनीमिया, अल्प रक्तचाप, हाइपोटेंशन, डिस्टर्ब्ड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, renal failure, peripheral circulatory failure, excessive cortical secretion produces अधिवृक्क ग्रंथि, supine Cushing syndrome, मधुमेह, diabetes, नपुंसकता, impotence, अनार्तव, amenorrhea, masculinization, women, virilism, feminization, male development of mammary gland in male, early onset of menstruation in child females, hermaphroditism and enlarged clitoris. All these can be named in, ये जो मैंने नॉमेनक्लेचर दिए है ये रोग तो है ही, इनका कोई ना कोई आयुर्वेदीय वर्जन भी है इन रोग का, तो उनको हम इसमें एस्पेक्ट में ले सकते हैं और वो कहीं ना कहीं अग्नि के माध्यम से इन रोगों की उत्पत्ति हो रही है। वर्ण वैषम्य भी अग्नि के माध्यम से ही हो रहा है, तो ये पांडु भी अग्नि के माध्यम से ही हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे तत्व जो है अग्नि को ही जो है रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, स्रोतस को ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, स्रोतो दृष्टि को ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट वन, Phalam or बीज ग्रंथि। बीज ग्रंथि पुटक, ovarian follicle secretes estrogen, which in result helps to secrete antahsrav, luteinizing hormone. This hormone helps to prepare corpus luteum and its secretion progesterone. The estrogen initiates to grow secondary sexual characters like increase in the size of sanyashe and mammary gland and hair in the kaksha, that is axilla, and function growing. Next one please. अब इसमें हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट वन सर, ये यहाँ पे आ गया था, प्रोजेस्टेरॉन proliferates endometrium and regulates glycogen and water contents. The important hormones of the ovary are the following: estrogen, progesterone, electin, and inhibin. Ayurveda has probably used the term Stri Shukra for estrogenic hormone. Sushruta has also considered the time for onset of Artav Darshan, menstrual cycle, and Artav Kshay, menopause, in following couplet: Tad Varsha Dwadashat Kale Vartamanam Astrika Punah जरा अपक्व शरीराणाम याति पंचाशतः क्षयम। हम देखेंगे तो ये जो हमारा तद वर्ष द्वादशात काले आश्रित गुना, ये जो एस्पेक्ट बताया है ये किसको इंगित कर रहा है? ये उसी को इंगित कर रहा है आपके मेनार्के को। और जब हम जाति पंचाशयतः क्षयम की बात कही है, ये सुश्रुत ने कही आज से 3000 साल पहले कही है, तो ये किसको इंगित कर रहा है? ये मेनोपॉज को इंगित कर रहा है। तो निश्चित रूप से यहाँ ग्रंथि शारीर को हम इससे समझने का प्रयास कर सकते हैं। नेक्स्ट So this way we come to conclude this session. There are many references which prove the existence of Granthi Sharir in Ayurveda, but this has not been discussed as a separate chapter in Ayurvedic classes. A collective effort is needed to study these excerpts and establish an Ayurvedic theory for Granthi Sharir. If this is done, it would be a great contribution
to state the concept of Granthi Sharir in Ayurveda. Therefore, it is obvious that Granthi Sharir has a well-placed existence in Ayurveda classics. तो scattered प्रकीर्ण जिसको हम कह सकते हैं, तो स्कैटर्ड रेफरेंसेस के बेस पर हम आइडेंटिफाई करने की बात कर सकते हैं कि ग्रंथि शारीर है, और इन माध्यम हमारे यहाँ ग्रंथि शारीर को, चूंकि ग्रंथि शारीर नाम से कोई विषय नहीं था, अग्नि और स्रोतस को हम इसको समझने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों भी अलग एस्पेक्ट हैं। इसको जब हम सिलेबस की बात करेंगे वहां सिरा धमनी और स्रोतस की बात कही है, तो या तो इसको हम अलग से ही इसी को एस्पेक्ट को हम ग्रंथि शारीर में लेते हुए हम डेवलप करें तो अच्छा है, क्योंकि हमारे यहाँ सिरा धमनी स्रोतस का कंसेप्ट किस स्वरूप में है उसको वो जो हम ग्रंथि शारीर, तो सिलेबस में उन्होंने ग्रंथि शारीर को अलग से मान रखा और सिरा धमनी स्रोतस को अलग मान रखा है चैप्टर। तो क्या इन दोनों को हम कंबाइन कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं? क्या ये दोनों एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं? ये सवाल हैं, अनुत्तरित सवाल हैं, ये डिस्कशन का मैटर है। क्या इनके साथ जोड़ते हुए हम आगे चल सकते हैं? तो ये सब आपके ऊपर है, क्योंकि जो हम तो हो सकता है हमें कई लोग अब ऐसी स्थिति में हो जो अपने कार्य को पूरा कर चुके हैं, जो कुछ बहुत सारे लोग ऐसे हों जो आने वाली जनरेशन है और कहीं कुछ मेरे माध्यम से उनको कुछ पॉइंट्स अगर ऐसे मिले हों और वो इसमें कुछ काम करने की स्थिति में हो, तो वो आगे इसको बढ़ाते हुए डेवलप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वन सर। थैंक यू वेरी मच। आपने आज मेरे को पूरा समय दिया है, मेरे को बताने का अवसर दिया। पता नहीं मैं कितना आपको बता पाया, कितना रहा, लेकिन मेरा ये कोशिश यही रहती, मेरा व्यक्तिगत इंटरेस्ट यही है कि जो हमारे कंसेप्ट हम कैसे एक्सप्लोर सकें, कैसे समझ सकें, उनके अप्लाइड वे में हम कैसे उनको आइडेंटिफाई कर सकें, ये मेरा प्रयास रहता है। मुझे आपने अवसर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर इस व्याख्यान के विषय में आपके कोई मेरे को कोई जो सुझाव हो वो दे सकते हैं, कोई प्रश्न हो वो रख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। सर थोड़ा सा समय हो गया है। जी क्लोजिंग हाँ रिमार्क्स पढ़े, एक्चुअली मुझे थोड़ा बाहर भी जाना है। बिल्कुल 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 ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देशपांडे जी, अमोल देशपांडे है क्या? डॉक्टर अमोल दिख नहीं रहे सर। जी जी जी, करिए आप, कोई बात नहीं। ठीक ठीक, बहुत बहुत बधाई हो सर। ये बहुत ही अच्छा व्याख्यान आपके माध्यम से हमें आज सुनने को मिला है। जो विषय है आज का बहुत ही गंभीर विषय ग्रंथि शारीर, जैसे कि शुरू में भी आपने भी बताया और भी संभाषण की टीम ने बताया कि ये थोड़ा सा दुर्लक्षित भी विषय है और ज्यादा इसमें कोई काम भी नहीं हुआ है। और सही में ये बहुत एक इंटरेस्टिंग विषय है सर कि मॉडर्न फिजियोलॉजी के माध्यम से जब हम देखते हैं तो सही में इसका पूरे बॉडी में कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है कि जो ग्रंथि के द्वारा नहीं की जा रही है। तो सही में इस विषय को हमें गंभीरता से लेते हुए अब जो आपने अग्नि का एस्पेक्ट बताया है वो सही में सोचने की आवश्यकता है। आपका भले हाइपोथेसिस है लेकिन मुझे भी काफी हद तक वो समझ में आ रहा है कि हम अग्नि के ऊपर में हम विचार कर सकते हैं, क्योंकि जो भी आप मॉडर्न फिजियोलॉजी में भी जाएंगे तो अग्नि का विषय जहाँ पर भी आता है तो उसमें भी यही सब चीजें हैं कि केमिकल्स या जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम के माध्यम से ही चीजें सब रेगुलेट होती हैं। तो डेफिनेटली जो आज का विषय रहा है ग्रंथि वाला वो बहुत ही अच्छा रहा है, शुरू से लेकर बेसिक से लेकर अप्लाइड और आयुर्वेदिक भी। खासकर ग्रंथि को आयुर्वेद में समझने के लिए जो आपने मुख्यतः दो विषय रखे, एक तो अग्नि का विचार रखा है और स्रोतस का विचार रखा है। तो ये दोनों भी विषय के ऊपर में चर्चा की आवश्यकता है। और जो हमारी टीम है जिसमें आपके व्याख्यान के दौरान दो महत्वपूर्ण बिंदु आपने बोले थे कि एक तो बोला था कि विद्वानों के समक्ष में रख रहा हो, और शुरुआत में बोला था कि मैं आप में से एक हूँ। तो
तो हम ये मान के चलते कि हम सभी विद्वान ही हैं। तो इस पूरे विद्वानों की सभा में जो आज का पक्ष रखा गया है, तो सही में वह बहुत ही अच्छा रहा है सर आपका व्याख्यान। पुनश्च विश्व आयुर्वेद परिषद, भले आप टीम के मेंबर ही है, कन्वेनर ही है, फिर भी औपचारिकता के ऊपर विश्व आयुर्वेद परिषद रचना शरीर संभाषा टीम की ओर से हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। इसी के साथ मैं आपके वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जी जी जी। हमारे बीच में कुछ लोग जुड़े हुए हैं। आकाशदीप जी जुड़े हुए हैं, दिलीप जी जुड़े हुए हैं। आकाशदीप जी कैसे हैं? कंट्रीब्यूटर बना दिया है उनको। हाँ, आकाशदीप जी को और एक दिलीप गोस्वामी जी को ही बना दीजिएगा, दोनों को। और एक आशुतोष यादव जी को। थोड़ा थोड़ा 2-2 मिनट सबका एक बार व्यू ले लें। 2-4 लोग हैं। कोई अगर अपनी बात कहना चाहें तो उनका स्वागत है, क्योंकि ये विषय एक ऐसा थोड़ा सा, इस पे थोड़ा सा मुझे भी इंसाइट लेने की जरूरत है। अभी तो मैंने अपना कह दिया। आकाशदीप भी नहीं बने हैं शायद, कंट्रीब्यूटर व्यूअर्स हैं अभी। चलिए मैं बना देता हूँ मेरा इधर से। हाँ, लगता है कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं सचिन जी। आशुतोष जी। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते आशुतोष जी, कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं सर, आशीर्वाद है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, जी जी इस पे ग्रंथि शारीर जो अपना आयुर्वेद में जिस तरह से हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, जी जी पे अभी तक में जो हम समझ रहे हैं उसी के बारे में मैं अपना विचार यहाँ रखना चाहूंगा जी आप जी जनों के बीच। और जो आपने अभी कहा, इसमें से कई सारे बात जो अनछुए पहलू है उसको भी आपने व्याख्यान किया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। जी सर। और हम सभी निश्चित रूप से इससे लाभप्रद हुए हैं। जितने भी शिक्षार्थी हैं इसमें, सभी लोग कुछ न कुछ अपने अपने डायरेक्शन में आपके सुनने के बाद जरूर निश्चित रूप से सोचने को विवश हुए होंगे कि पहलू को हम किस तरह से अपने ग्रंथ के आधार पर वर्तमान समय में हम कहाँ रखें। तो अभी कुछ दिनों से हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि जो कुछ भी हमारे मेडिकल साइंस, जो नया यूरोपियन सिस्टम में जो मेडिकल साइंस का डेवलपमेंट हुआ है उसका, और आयुर्वेदीय जो ग्रंथ जितने हैं उसका जो कुछ भी विकास का पहलू है उसमें क्या साम्यता है और क्या विषमता है। तो इससे हमको लगा कि जिस समय में आधुनिक जो मेडिकल साइंस है उसकी विकास परंपरा प्रारंभ हुआ, आयुर्वेद से निश्चित रूप से अभी प्रेरित है। जी 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 जी। हम लोग विलियम हार्वे का नाम जानते हैं। का प्रोसेस के बारे में देखते हैं कि सबसे पहला केमिकल जो यूज हुआ ग्लूटरली हुआ था में, और उसका डार्क स्टेनिंग आने लगा। फिर उसके बाद उसको चेंज करके अभी राइट नाउ आर्सेनिक और फॉर्मल्डिहाइड तक हम लोग आ चुके। फिर सब देखे उसी क्रम में फिजियोलॉजिकल बेसिस जो हम देखते हैं अपने संहिता ग्रंथों में, तो वाइड रेंज में उसकी डिस्क्रिप्शन मिलता है। बट रचना शारीर की यदि हम बात करें तो निग्लिजेंसी उसमें है कि रचना के संख्या शारीर पर्याप्त मात्रा में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं।